नमस्कार सर। सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। Good evening, sir. How are you, sir? मैं ठीक हूँ सर। Yeah, thank you. Very nice to see you after a long time. जी, 2 months, I मेरा think. सब मेरा सौभाग्य सर। Sunita, ma'am, good सुनीता गुड भाई evening. इवनिंग कैसी हैं सर। आप? कैसी मैं हैं ठीक हूँ मैडम सर। आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा। जी। Okay, हम I लोग मतलब think, इंतजार करते हैं इस सेशन का। yeah. मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य। So, Sarita, ma'am will help us today. Sarita, ma'am, will you start? Yes, sir, I'm ready. Just give me a minute. Welcome, Please. Vinod sir. So nice to see you again. Sunita ma'am, welcome once again. थैंक यू। नमस्ते जी। Dear educators, it is time for more clarity on question paper patterns and expectations. Our 197th session is exclusively for Hindi Grade 10 question paper discussion for Hindi educators. Now I turn on my AI, Cinderella, to welcome our moderator. Good evening to all the exuberant educators. I welcome you all to the 197th web training series of CBSE Bharat Sahadaya. Now I take it as a pleasure to introduce today's moderator, Ms. Sunita Sharma. Sunita ma'am is a passionate educator of Hindi language with a long experience. She is the author of Hindi Grammar Workbook, chapter-wise MCQs named as Sahajya Sagar and Akanki Sanchai, and ICSE Class 10 Hindi topic-wise grammar MCQs. She is also the sub-editor of Hindi Transformers, the Educators magazine. Subject Ambassador of Hindi, where she handled 35 branches of Orchids, the international school. She has guided 220 teachers and worked on the Subject Improvement Center Superintendent of NEET exam conducted on September 13, 2020, amidst pandemic. She has also participated in Aviskar conducted by Mumbai University. Gave Naviance career counseling, presentations for senior sections, grade 8, 9, 10 and 11. Guides Captain Himalaya Wood Badge from Pachmari National Training Center, Madhya Pradesh, India. She has attended workshops conducted by Saraswati Prakashan and Vivan Prakashan. Ms. Sunita has presented papers in 3 national and 1 international seminars conducted by Mumbai University. The awards received by Ms. Sunita are the Extra Mile Educator 2022 Award and Certificate of Honor Bharat Sahadaya Resource Person Award at the International Educators Conclave. Ma'am, you are literally beyond awesomeness. Now I very proudly invite you to moderate this grand session. Over to you, ma'am. Welcome, Sunita ma'am. The stage is all yours. Best of luck. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरिता। यहाँ उपस्थित सभी माननीय शिक्षकगण, शिक्षिकाओं, मार्गदर्शकों को मैं सुनीता शर्मा आप सभी का इस 197 कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को इस सांझ की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता जयंती के पश्चात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी हाँ, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल प्राप्त करने का नहीं। कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही हमें फल प्राप्त होने की चिंता ना हो। हमें अपने कर्मों के परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह सिद्धांत छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन्हें कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। आज हम सभी मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 10वीं के नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर तैयारियों की रणनीतियां और उनका अनुपालन। आज का विषय हमारे सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक साधक है जो उनकी पढ़ाई को मापने का माध्यम होता है।
और उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करवाने में सहायता करता है। आप सभी को याद होगा, इसी मंच पर 192 कार्यक्रम के दौरान बोर्ड प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर के अनुकूल हर कक्षा में उच्च चिंतन क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और गहन चिंता से जुड़ी अध्ययन व अभ्यास सामग्री का निर्माण किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार छात्रों की दुर्बलताओं को पहचान कर अधिगम रिक्तताओं को दूर किया जाए, अवधारणाओं को सहज रूप में आत्मसात करवाने के लिए अनेक युक्तियां जो है यहाँ पर साझा की गई थी। और इस विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर हम सभी ने छात्रों का मार्गदर्शन किया और उसी के अनुकूल उन्हें तैयार किया। और आज इस नए प्रश्न पत्र प्रारूप को हल करने हेतु कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाना चाहिए, इसी विषय पर आज डॉक्टर विनोद प्रसून जी प्रकाश डालेंगे। सीबीएसई भारत सहोदय के 197वें प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सुनीता शर्मा आज आपकी मध्यस्थ हूँ। सबसे पहले माननीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सर जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया और मुझ पर उन्होंने सदैव विश्वास रखा। इस सत्र को आगे बढ़ाने से पहले कुछ छोटे मगर महत्वपूर्ण निर्देश। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए कृपया अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखें। आप सभी को अपना कैमरा चालू रखने का आग्रह करते हैं हम सभी, ताकि हम सभी एक दूसरे को देखकर एक जुड़ाव महसूस कर सके। आपके मन में उठने वाली सभी शंकाओं, सवालों के लिए निश्चित ही हमारे पास जवाब है। कोई भी सवाल हो उसे सीधे चैट बॉक्स में लिख दें। चैट का इस्तेमाल केवल सार्थक संदेशों, प्रतिक्रियाओं या प्रश्नों के लिए करें। सत्र के अंत में आप सभी के प्रश्नों के हल का समय निर्धारित है और कार्यक्रम के अंत में हम फीडबैक लिंक और सर्टिफिकेट लिंक पोस्ट अवश्य करेंगे। कृपया फॉर्म भरना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे मार्गदर्शन का प्रकाश बनेंगी। तो अब बिना किसी देरी के इस ज्ञान यात्रा की तैयारी हो जाए। चलिए सीखें, साझा करें और एक दूसरे को ऊपर बढ़ने में, आगे बढ़ने में सहायता करें। आज के इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और माननीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सर का यहाँ उपस्थित समग्र हिंदी परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी हाँ, जिनकी उपस्थिति ही कमरे को विद्या के प्रकाश से भर देती है। ऐसी विभूति हैं वे जिन्हें परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ती। पदक और प्रतिष्ठा उनकी आकांक्षा नहीं है। सत्य और न्याय उनके जीवन का मूल मंत्र है। सलाम सर, आप जिंदगी का एक नित्य ज्योति पुंज हैं जो हर पथ को आलोकित करते हैं। आपके कर्म, आपकी निष्ठा, सब कुछ विशाल है, अनुकरणीय है। आप संस्थानों के सारथी, अध्यक्षता ही नहीं एक आदर्श है। कर्तव्यों के प्रति आपका समर्पण ही आपका सौंदर्य है, आपकी महानता है। शिक्षा का क्षेत्र एक निरंतर प्रवाह है, जहां नवाचार और गति ही सफलता के हथियार हैं। हमारे बीच सौभाग्य है कि सलाम सर जैसे दृष्टा विद्यमान हैं, जो शिक्षकों के भीतर उत्कृष्टता का ज्वार जगाते हैं। कठिन फैसले लेने, उन्हें अमल में लाने का हौसला उनमें कूट कूट कर भरा है। हमारे संस्थापक निदेशक डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का स्वागत है। डॉक्टर सलाम एक शिक्षाविद हैं जिनके पास शैक्षिक क्षेत्र में 23 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। वे सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर हैं। सर वर्तमान में विबग्योर हाई, यलहंका बेंगलुरु के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। वह नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉरेन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भारत सरकार के लिए एक एसेसर के रूप में जुड़े हुए हैं।
व भारत ट्रांसफॉर्मर एकेडमिक ग्रुप बीटैग के सीईओ, जो शिक्षा विद्या के हजारों संघों का एक महत्वपूर्ण संघ है, जो सभी एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम कर रहे हैं, और वह एक उद्देश्य है शैक्षिक उत्कृष्टता। मैं गर्व से, सम्मान से आज डॉक्टर अब्दुल सलाम सर का स्वागत करती हूं और उन्हें आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। तो आइए उनके अनुभवों के ज्ञान का अमृत ग्रहण करें और शिक्षा के पथ पर साथ साथ आगे बढ़ें। डॉक्टर सलाम सर। नमस्ते सुनीता जी, बहुत शुक्रिया। एंड आदरणीय विनोद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। मेरे साथी बिजू सर, बिजू एस पिल्लई और सरिता मैम, सबको शुभ संध्या। Sunitha ma'am, you have done a very powerful introduction, a philosophical introduction. Thank you so much. And you have set a very good environment for Hindi, teachers, educators. And Vinod sir, we have been waiting for you. By God's grace, you are here today with your wisdom, with your lot of knowledge and experience. So all educators, when I posted the, creative in the group, they started asking for the link, and many have joined as well. Maybe this is, school annual day season, and so many tests are going on. But still, we are sure that they will make use of this video, which we will be posting on the WhatsApp, Bharat Sahodaya YouTube channel. About grade 10 question paper, I hope you will be getting a wonderful, journey through the question paper setting and all the expectations by CBSE, and all your concerns will be cleared by Vinod sir. So thank you so much, sir, and all the very best to you, and hearty welcome to each and everyone for joining this 197th session. We are nearing 200 with all your blessings and support and cooperation. Thank you so much. Let's let our ears to Dr. Vinod sir. Thank you. Over to Sunitha ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय शिबू जी, आपकी उपस्थिति ने हमारी कार्यशाला को और भी उत्साही और प्रेरणादायक बना दिया है। बिजू सर। क्षमा करें, बिजू जी। हाँ, श्री बिजू एस पिल्लई बीटेक के सह संस्थापक हैं और वह तिरुवनंतपुरम के श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य भी हैं। उनके पास शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर समृद्ध अनुभव है। आपकी उपस्थिति ने हमें यह शिक्षा दी है कि कैसे सच्चे माध्यम से ही समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आपका समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपसे आपके अनमोल विचारों को साझा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपके साथ इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं। आदरणीय बिजू सर। धन्यवाद मैम। Hearty welcome to all the educators in the BTech group. Good evening, Vinod Prasoon sir. Hope that it is around 1 year. Last year, December, we all were in one room. वास्तव में बहुत अच्छा समय था। Yeah. We all were, and God gave the blessing to be in one room for at least 2 days. So it was a great blessing to have a wonderful scholar along with us, and hope this evening will be very energetic and informative, having such a great person from the heart of our country. And Vinod sir, we are having many doubts relating to the 10th board examination also, some deleted areas, and some new question tag also has come where we need some support from you. So hope all the Hindi
10th handling teachers will be getting more informations related to this from our great personality Vinod sir. So I'm not wasting much of your time, sir. Very nice to see you back, that to the same month, to just renew our golden memories in जी Trivandrum. So बिल्कुल hope we will meet soon, and जी thanks to all. Thank you, ma'am. धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर, उन स्वर्णिम पलों को याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी ऐसा लगता है जैसे जैसे जिक्र होता है हम वहां जी पहुंच जी जाते हैं, और जी वो जी 2 दिन कहाँ पलक झपकते बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन हजारों यादें बसी हैं वास्तव जिनके सहारे हम इंतजार कर रहे हैं कि अगली बार जल्द मिलेंगे। जी अब आगे बढ़ते हुए मित्रों और सहयोगियों, ज्ञान के चौपाल में विनोद सर एक सूर्य के समान सदैव जगमगाते हैं। हमारे बीच पधारे डॉक्टर विनोद प्रसून जी वह शख्स हैं जिनका परिचय किसी शब्दकोश में लिखा है जरूर, पर दिल तो उन्हीं की लयबद्ध शब्दों से गूंजता है। आप हमारे प्रेरणा के स्तंभ हैं, जिनके मार्गदर्शन ने न जाने कितनी बार छात्रों और शिक्षकों की जिज्ञासाओं को शांत किया है। प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक हर मन के दरवाजे खोले हैं। आप लयात्मक नवाचार के जादूगर हैं। आपके YouTube के राग हम सभी गुनगुनाते हैं। आप 28 सालों से शब्दों पर राज कर रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल के हिंदी विभाग के अधिपति, CBSE के ज्ञान भंडार, आप हिंदी व्याकरण को सरल बनाने की अपनी कला, आपकी कला कमाल है, जिससे अध्यापक भी मुस्कुराए और विद्यार्थी भी गुनगुनाए। न्यू सरस्वती के पाठ आपके नाम से चमकते हैं। आकाशवाणी से दूरदर्शन तक हर जगह आपकी आवाज ही शब्दों को जीवंत बनाती है। प्रणय प्रसून पर साहित्यश्री, हिंदी भाषा सेवा सम्मान, स्टार रिसोर्स पर्सन अवार्ड, एकलव्यम हिंदी सेवा सम्मान, सरस्वती शिक्षक सम्मान, आपकी उपलब्धियों की सूची कोई नदी नहीं समंदर है। माननीय डॉक्टर विनोद प्रसून सर, आज आपका समय पाना हम सभी के लिए सौभाग्य से कम नहीं। हम सभी बेसब्री से आपकी ज्ञान गंगा में डूबने को लालायित हैं। आइए आज सब मिलकर शिक्षा के इस नए अध्याय को पढ़ें, जानें, लिखें, लयबद्ध शब्दों, सरल व्याकरण, अनंत ज्ञान और अनेक रणनीतियों के साथ आगे बढ़े। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर विनोद प्रसून सर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता बहन। अभिभूत हूँ वास्तव में, इतनी बड़ी उपस्थिति और आपके द्वारा दिया गया परिचय वास्तव में अभिभूत कर रहा है। और बीजू सर ने जो पल याद दिलवाए उन्होंने तो अभिभूत कर दिया। आत्मिक आभार सलाम सर का कि मुझे अवसर दिया पुनः। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं हिंदी सेवी, उन सबकी गरिमा में उपस्थिति मुझे गौरवान्वित कर रही है। आप सबका हृदय से आभार। और शुरू करते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अगर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण किया जाए तो हमारा कार्य फलित होता है, चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो एक बार सभी अपने अपने आराध्य को नमन कर लें, उसके उपरांत हम शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। परम श्रद्धेय मां शारदा को नमन करता हूं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं। वास्तव में गरिमामयी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाती है। तो आज ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें आप चैट बॉक्स के माध्यम से अगर जुड़े रहेंगे ना तो वह द्विपक्षीय संवाद बन जाएगा, है ना। संवाद द्विपक्षीय होना चाहिए या संवादात्मक होनी चाहिए कार्यशाला। तो आज की कार्यशाला भी हम संवादात्मक रखेंगे। आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संवाद करते रहिएगा। और शुरू करते हैं अब।
वास्तव में सबकी गरिमामयी उपस्थिति गौरवान्वित कर रही है। मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, विषय बहुत अच्छा है, हम उस पर मिलकर चर्चा करेंगे तो वास्तव में बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, आज का विषय है 10वीं कक्षा के नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर तैयारी की रणनीतियां और उनका अनुपालन। आज पहली बार सुनीता बहन को देखने का, सुनीता बहन नहीं और दूसरी बहन कौन है जिन्होंने सरिता। सरिता। तो 100 से बिल्कुल नाम है, तो अच्छा लगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। 10वीं कक्षा के नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर तैयारी की रणनीतियां और उनका अनुपालन। विषय बहुत अच्छा है। पिछले महीने ही सीबीएसई ने एक और सैंपल पेपर जारी किया, पहले भी किया था। उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। क्या उच्च चिंतन क्षमता अपेक्षित है? क्या दक्षता, जो दक्षताधारी शिक्षा है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, उसको कैसे आकार दिया जाता है? कैसे जो कठिनाई स्तर है उसको हमारे बच्चे कैसे झेलें? कई बार हम कह देते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन आया। जो दक्षताधारी शिक्षा है ना, अगर उसमें हमने जो अवधारणाएं हैं, अगर उनको स्पष्ट कर दिया, अवधारणात्मक आत्मसातीकरण करवा दिया, तो फिर कठिन नहीं लगेगा पेपर। कैसे उसको करना है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपठित बोध को कहा जाता है, अपठित गद्यांश को, कि वह कठिन है। उच्च चिंतन क्षमता उसमें दिखाई देती है ना। तो कैसे उसको हम करें? एक बहुत सरल उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ा यहाँ पर वो नहीं है। आप देखिएगा, छोटा सा हमने गद्यांश लिया और उसके आधार पर 3 प्रश्न यहाँ पर बनाए, अलग अलग स्तर के। वृत्त अध्ययन, केस स्टडी का अर्थ हो गया गहरा अध्ययन, जो गहराई से किया गया अध्ययन है। और दूसरा असर्शन रीजनिंग, कथन कारण। तीसरा हमने उच्च चिंतन क्षमता पर लिया है। इसी प्रकार का जो पेपर पैटर्न अभी जो नया पेपर आया, आपने देखा होगा कि पहले ही उसमें जो अपठित बोध दिया गया, तो उसमें इस प्रकार के प्रयोग दिखाई दे रहे हैं कि जहां बच्चे को थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, उच्च चिंतन क्षमता वहां पर होनी चाहिए। तो उस उच्च चिंतन क्षमता के लिए हमें बच्चों को उस स्तर की तैयारी जरूर करवानी चाहिए। तो उसके लिए 2 या 4 अगर हमने इस स्तर के, जो स्तर सीबीएसई निर्धारित कर रही है, जो बोर्ड निर्धारित कर रहा है, अगर उसके स्तर के हमने करवा लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम प्रारंभ में बच्चों को बहुत सरल अपठित बोध दे देते हैं। अगर हम 6ठी का स्तर देखें और 10वीं का स्तर देखें तो बहुत अधिक अंतर नजर उन अपठित बोध में नहीं आता नजर, जबकि क्रमिक विकास होना चाहिए। 6ठी का स्तर अलग है, 10वीं का अलग स्तर है। तो 10वीं के स्तर तक आते आते वो जो उच्च चिंतन क्षमता है, जो अभिव्यक्ति परक जो कहना चाहिए कौशल है, उसको कहीं ना कहीं परखना है। तो उसको परखने के लिए जैसे बहुत छोटा सा यहाँ पर उदाहरण दिया, सुनीता बहन पढ़ेंगी इसको? यदि वैश्विक ताप वृद्धि। अवश्य सर। धन्यवाद। यदि वैश्विक ताप वृद्धि की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि मानव जीवन पर संकट आ सकता है। भयावह सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है और इन सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। मानव समाज के आगे यह एक बड़ी चुनौती है। बहुत सुंदर, बहन ने बहुत सुंदर पढ़ा। और आप देखेंगे कि जब अभ्यास करवाना हो ना, तो बहुत छोटा हम अपठित बोध दे दें, अपठित गद्यांश दें, क्योंकि उस पर आधारित 2-3 प्रश्न अगर हम करवा रहे हैं, इस प्रकार अभ्यास आगे बढ़ा रहे हैं, फिर बाद में हम 150 तक चले जाएं, 150 शब्दों तक। अब देखिए, जैसे पहला प्रश्न है तो है गद्यांश के आधार पर मानव समाज के सम्मुख खड़ी चुनौती के लिए इनमें से कौन से कथनों वाले विकल्प का, मतलब जो सही कथन है, कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो गर्मियों में उत्पन्न बिजली संकट का कृषि एवं मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव, तो एकदम अलग हो गया, है ना। बिजली संकट उसमें आया तो वो सही नहीं है यहाँ पर। अकाल समुद्र का जलस्तर बढ़ना, अकाल समुद्र का जलस्तर बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का जीव जंतुओं पर प्रभाव, पूरे संसार में अंधाधुंध वन कटाव, तो वन कटाव की बात नहीं चली है ना। वन्य जीवों का मानव बस्ती की ओर पलायन, तो इसकी बात नहीं है। अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन व वैश्विक ताप वृद्धि से जीवन संकट तक की स्थिति,
तो अब इसमें कौन कौन सा सही हुआ, तो थोड़ा यहाँ पर बच्चा गहराई से पढ़ेगा तो समझेगा कि क्योंकि कम हमने शब्द लिए हैं उसमें, तो बच्चे का ध्यान उस पर केंद्रित करने में हम सफल हो जाएंगे। पहले है कि बच्चों का ध्यान उस पर केंद्रित करवाया जाए, क्योंकि जो बोर्ड पेपर बना रहा है उसमें जो अपठित बोध आ रहा है उसमें कठिनाई स्तर है। तो छोटे छोटे हम अगर पैराग्राफ देते हैं, अनुच्छेद देते हैं, उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो बच्चे अच्छी तरह से उसका अभ्यास कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं, चिन्हित है, कथन 2 व 4 सही है, यानी अकाल, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का जीव जंतुओं पर प्रभाव, और चौथा। इसी प्रकार अगर हम आगे आए तो हमने यहाँ पर कथन कारण वाला प्रश्न देखा है। देखिए छोटा गद्यांश, उसी पर आधारित हमने कथन कारण वाला भी बना दिया, वृत्त अध्ययन वाला भी बना दिया, उच्च चिंतन क्षमता वाला भी बना दिया। वैश्विक ताप वृद्धि की अनदेखी मनुष्य को भारी पड़ सकती है, बिल्कुल सही कथन हो गया। कारण अनदेखी मानव का स्वभाव है, शेष सब कुछ ईश्वर सही करेंगे, तो कारण वो जो है गलत हो गया। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या, ये इसमें जो है सही व्याख्या नहीं है, सही उत्तर होगा घ। इसको चिन्हित कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सही उत्तर कौन सा हो गया, घ। तो इसको हम चिन्हित किए हुए को हटा देते हैं। सही उत्तर हमारा घ हो गया, क्योंकि ये जो है सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उच्च चिंतन क्षमता पर आधारित प्रश्न है, जहां पर जो आशय पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं जहां शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो उसी से मिलता जुलता यह है, वैश्विक ताप वृद्धि का आशय है विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ना, हमारी धरती के औसत तापमान में वृद्धि, विश्व में मशीनों की संख्या में वृद्धि होना, विश्व में देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ना। तो सही उत्तर है हमारी धरती के औसत तापमान में वृद्धि। तो इस प्रकार हमने देखा कि छोटा गद्यांश था, लेकिन बच्चे उसकी ओर बढ़ेंगे जहां वो जो उच्च चिंतन क्षमता वाला जो अपठित बोध है, जो असर्शन रीजनिंग पर आधारित है, जो केस स्टडी पर आधारित है, ऐसे प्रश्न जो कठिनाई स्तर लिए हुए हैं, हमारे बच्चे उनका अभ्यास अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन यही है कि हम इस प्रकार अभ्यास शुरू करें। एकदम प्रारंभ में ही अगर हम बहुत कठिन स्तर के दे देंगे तो नहीं कर पाएंगे बच्चे। छोटा गद्यांश उन्होंने पढ़ा, उसको आत्मसात किया उसके भाव को, उसके बाद उन्होंने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। हम 3 प्रश्नों से शुरू करें और धीरे धीरे करके उनको जो बोर्ड पैटर्न है उस पर ले जाएं। आप मेरी बात से सहमत हैं? एक बार चैट बॉक्स में आ जाइए। सर क्षमा चाहती हूँ, सरोजनी मैडम जानना चाहती हैं कि महोदय ये जानना चाह रही थी कि कथन किस, क्षमा करें जी, कथन किस अर्थ में गलत हो सकता है? हाँ, गलत हो गलत सकता है, नहीं कथन भी गलत हो सकता है। कथन मान लीजिए वहां पर वैश्विक ताप वृद्धि की जगह कुछ और लिख दिया जाता है ना, तो अपने आप में मान लीजिए वैश्विक युद्ध संभावना है ना, विश्व युद्ध की संभावना, इस प्रकार का अगर वहां पर दिया होता, उसका पूरे विश्व पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो वो कथन तो गलत हो जाता। तो कथन को भी कथन भी गलत हो सकता है ना। व्याकरण में भी मान लीजिए मैं कहूं कि न तो तुम उसे जानते हो न ही मैं, और मैं कह दूं कि यह सरल वाक्य है, तो कथन गलत हो गया, क्योंकि संयुक्त वाक्य है ना, और का लोप है। तो इस प्रकार कथन भी गलत हो सकता है। एक बार चैट बॉक्स में सभी आ जाइए। चर्चा सही चल रही है जी? जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्याकरण पर आते हैं। जो पेपर पैटर्न में जो कठिनाई स्तर दिया हुआ है, हम आज बात उसकी करेंगे, कैसे बच्चों को अभ्यास करवाया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए। तो अपठित बोध की रणनीति आपको बिल्कुल पसंद आई कि हम छोटा गद्यांश ले लें, बच्चे अपने आप भी बना लें, चाहे किसी भी उस पर ले लें, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर ले लें, बच्चे अपने आप 4-5 लाइन बनाएं, उन पर आधारित कथन कारण वाला प्रश्न बनाएं, या आप अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप ही छोटा अनुच्छेद ले लें और उस पर आधारित 3 प्रश्न बना के बच्चों से अभ्यास करवा लें। आगे बढ़ते हैं कि अब आगे देखेंगे, देखिएगा नए पेपर पैटर्न के अनुकूल व्याकरण के अभ्यास हेतु सहज सरल युक्तियों से सज्जित अभ्यास सामग्री, रचना के आधार पर वाक्य भेद, पदबंध और समास। आपको आनंद आएगा
जब आप देखेंगे कि पेपर पैटर्न के अनुकूल बिल्कुल सामग्री है, समझाने की विधियां हैं, तो बहुत कुछ आज की कार्यशाला में है। रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, सबसे पहले तो पाठों का आकार छोटा किया जाए, क्योंकि इस समय हम देखिए हमने विस्तार से पढ़ा दिया बच्चों को, अब बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के वे करीब हैं, तो उनको चाहिए नोट्स। नोट्स कैसे होने चाहिए? वास्तव में बहुत ही कम शब्दों का उसमें प्रयोग हो, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पढ़ेंगे नहीं। अगर इसी पाठ को वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद को अगर हम 8 पेज का चैप्टर उनके पास भेज दें, तो संभवतः वे नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने 3 स्लाइड बनाई तो पढ़ लेंगे। अब देखिए जैसे इसी में है क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर दिया उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आपने नया पेपर देखा होगा, जो नया सैंपल पेपर आया उसमें लिखा हुआ है, ऐसा प्रश्न आ गया, शास्त्र पर आधारित आ गया, शास्त्रीय जानकारी पर आधारित आ गया कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ऐसा। तो अगर हमारे बच्चों के पास ये जानकारी होगी, शास्त्रीय जानकारी भी होगी, तो अच्छा रहेगा कि एक उद्देश्य और एक विधेय, एक वचन बहुवचन कर्ता का एक होना, मुख्य क्रिया एक होना, ये पहचान है। धातु रूप में ते ही ने से ने पर कर का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। के कारण, के बलबूते, के बावजूद आदि संबंध बोधकों का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण बच्चों को दिया जा सकता है कि सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, हड़ताल होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, सचिन के बलबूते भारत ने कई मैच जीते हैं, बचपन का मित्र होने के बावजूद मैं उस पर विश्वास नहीं करता, आदि आदि। हमने उदाहरण दिया। नीचे जो उदाहरण है आप देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य, बच्चों ने ध्यानपूर्वक पढ़कर वाक्य अच्छी तरह समझ लिया। एक क्रिया, मुख्य क्रिया एक उद्देश्य, बच्चों ने उद्देश्य हो गया, समझ लिया, क्रिया हो गई, तो मुख्य क्रिया एक हो गई। तो यहां पर एक ही स्लाइड में सरल वाक्य समझा दिया गया। इसी प्रकार आगे आप प्रयोग देखेंगे तो संयुक्त वाक्य एक स्लाइड में समझा दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि हम सामग्री को जितना कम करेंगे, जितना हम सार उनको समझाएंगे इस समय, उतना उपयोगी होगा। लेकिन सार में पेपर का जो पैटर्न है, पेपर की जो मांग है, वह पूरी होनी चाहिए। हमारी सामग्री, हमारी अध्ययन सामग्री उस स्तर की होनी चाहिए जो पेपर की अपेक्षा है, पेपर का जो कठिनाई स्तर है उसके अनुकूल बनी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, देखिए उनको शास्त्रीय जानकारी भी मिल जाएगी इसमें, और समझ में भी आ जाएगा, पहचान भी हो जाएगी। और किंतु परंतु लेकिन इसलिए अतः या तो या, न तो न ही आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से वाक्यों के जोड़े जाने पर, तो उनको शास्त्रीय जानकारी भी हो गई केवल 2 लाइनों में। तो सामग्री को जितना छोटा किया जाएगा उतना अच्छा रहेगा। याद रखें कि क्योंकि चूंकि के साथ इसलिए आने पर मिश्र वाक्य बनता है। हमने यहाँ पर ये बात रखी। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो और से जुड़ गया, 2 वाक्य जुड़े, 2 उपवाक्य जुड़े, संयुक्त वाक्य हो गया। बच्चों ने ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ा और वाक्य अच्छी तरह समझ लिया, इसमें भी और से जुड़ गया है, संयुक्त वाक्य हो गया। इसी प्रकार जब हम मिश्र वाक्य पर आए तो वहां भी एक स्लाइड में काम चला। मिश्र वाक्य वैसे बहुत बड़ा है, विस्तार लिए हुए है, लेकिन यहाँ पर सामग्री को छोटा किया गया, मतलब आकार छोटा किया गया, उसका है संपूर्ण, उसके अंदर सब कुछ है। तो जकी यदि सूत्र से जो जिसे जिसने जिन्होंने जिसका जिसकी जैसे ही जो ही जब जब जहां जहां की क्योंकि ताकि यदि अगर यद्यपि तथापि, तो सब कुछ इसके अंदर आ गया है, इससे बाहर नहीं जाएगा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो जिसमें आ गया, जिसमें से पहचान हो गई कि यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य है। चूंकि बच्चों ने ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ा, चूंकि आ गया इसलिए का जोड़ा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तो आपको कैसा लगा यह सुझाव कि हमें इस समय बच्चों के सामने सामग्री को बहुत छोटा करके रखना चाहिए, लेकिन उस कम सामग्री में भी जो हमारा नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप है, जो कठिनाई स्तर है, वो सब कुछ समा जाना चाहिए। तो यह सुझाव आपको कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा।
सर यहाँ प्रीति जी प्रश्न कर रही हैं कि सर निवेदन है आपसे कि साधारण वाक्य और सरल वाक्य में सूक्ष्म अंतर वाले प्रश्न क्यों दिए जाते हैं बोर्ड में, जैसे लास्ट ईयर दिया गया था। देखिए, प्रश्न ये दक्षता आधारित शिक्षा है और इसमें कहीं ना कहीं अवधारणात्मक आत्मसातीकरण बच्चा अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको उत्तर को दे देगा वह, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न तो अपेक्षित हैं, आ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, पिछली बार ऐसा आया प्रश्न, मतलब इतना सूक्ष्म अंतर वाला नहीं देना चाहिए, आपकी बात सही है, कुछ अन्य उसको लिख सकते हैं, है ना। सरल सरल ही है उसको, अगर चौथा भेद बनाना भी है तो कहीं अर्थ के आधार पर दे दें ताकि बच्चा समझ जाए कि अर्थ के आधार पर विधान है, उस वाक्य को उसको छोड़ दे, बाकी 3 भेदों को समझे, सरल संयुक्त मिश्र तो उसमें से छांटे। इतना वो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। जो बहुत कुछ ऐसा है जहां अवधारणात्मक उसके ज्ञान परखा जाता है तो वहां पे तो स्वीकार है, लेकिन कहीं जो जहां भ्रमित किया जाए तो भ्रमित तो नहीं करना चाहिए किसी भी पेपर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब देखिए, अब आपने इसका उत्तर दे दिया सर जी। क्षमा चाहूंगी, एक प्रश्न और था प्रीति का कि जी सर पुस्तकों में, बहुत सारे पुस्तकों में क्योंकि और इसलिए मिश्र वाक्य में आते हैं। देखिए, चूंकि और इसलिए, क्योंकि और इसलिए मिश्र वाक्य ही बनेंगे अगर दोनों साथ हैं। क्योंकि उसे इसका ज्ञान नहीं था इसलिए उसने ऐसा किया तो मिश्र वाक्य है, लेकिन अगर अकेले अकेले इसलिए आ रहा है तो फिर वह संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य। है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। चर्चा अच्छी चल रही है। जी सर। अब देखिए, यही है कक्षा स्तरीय प्रयोग। जब बच्चों को हम पुनरावृत्ति करवाएं तो कैसे करवाएं, क्योंकि समय अब 2 महीने बाकी हैं, इसमें प्री बोर्ड भी है, उसके बाद की जो कुछ कक्षाएं हैं। तो इस प्रकार अगर हम श्यामपट्ट का प्रयोग करें, मैं कक्षा स्तरीय प्रयोग दिखा रहा हूं, बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभाग करते हैं, और यहाँ हमने सब कुछ लिख डाला। बच्चों से बातचीत करते हुए बोर्ड पर सब कुछ आ गया। क्या पहचान है, शास्त्रीय पहचान क्या है, व्यवहारिक पहचान क्या है, क्या उदाहरण हो सकते हैं। बच्चों ने उदाहरण दिए, अपने आप आपने नहीं लिखे, संकल्प ने ये उदाहरण दिया, शुभम ने एक उदाहरण दिया, इसी प्रकार आगे दूसरे बच्चों ने उदाहरण दिए, है ना। तो कहीं आप जब पुनरावृत्ति करवाएं तो इन नियमों का ध्यान रखें, और सामग्री को, मैं बार बार कह रहा हूं, सामग्री को बहुत संक्षिप्त रूप दे दें। उपयोगी सामग्री, जहां अवधारणात्मक आत्मसातीकरण का जरूर ध्यान रखना है, अवधारणाएं सारी स्पष्ट हो जाएं, इस प्रकार उसको हम संक्षिप्त कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं कक्षा स्तरीय प्रयोग दिखा रहा हूं, यह कक्षा स्तरीय प्रयोग है। जब हम पुनरावृत्ति करवाएं, पेपर पैटर्न बिल्कुल अच्छी तरह से हम आत्मसात कर लें। क्या पेपर की मांग है, पेपर में कठिनाई स्तर कहां कहां है, उसके अनुकूल पुनरावृत्ति होनी चाहिए, उसके अनुकूल अध्ययन सामग्री का निर्माण होना चाहिए। देखिए, जो उसमें आया स्लाइड में, यहां वही चीज चल रही है। जबकि यदि सूत्र पर चर्चा हो रही है, हम यहाँ पर उदाहरण बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चे अपने उदाहरण दें, जबकि यदि सूत्र से क्या क्या उदाहरण आ रहे हैं और बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। आप सहमत हैं कि अगर इस प्रकार पेपर पैटर्न को समझकर अगर हम पुनरावृत्ति करवाएं तो बच्चों के लिए उपयोगी होगा? एक बार बताइएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। जी सर यहाँ एक प्रश्न है जी। पूरबी का कि सर क्या फिर भी संयुक्त वाक्य में प्रयोग हो सकता है। नहीं, देखिए, फिर भी जो है ना, वह जबकि और फिर भी का जोड़ा है, उसके आगे जबकि का लोप है। जबकि मैंने एक उदाहरण दिया था यद्यपि तथापि का, अब उसी को जबकि और फिर भी से सुनिएगा। जबकि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह उत्तीर्ण नहीं हो सका, तो ये तो जबकि लिए हुए है। जबकि का अर्थ होता है यद्यपि। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की तथापि वह उत्तीर्ण नहीं हो सका, तो फिर भी अकेला नहीं आएगा, फिर भी को अपेक्षित है कि वो आगे की तरफ जबकि लेगा, तो ऐसी स्थिति में वह मिश्र वाक्य ही होगा। जी आगे बढ़ते हैं। जी सर। देखिए, जब बच्चों को अभ्यास करवाएं तो किस स्तर का अभ्यास हो। पाठ प्रवेश है, हम पढ़ा रहे, मान लीजिए
अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इतना बढ़िया पाठ प्रवेश लिखा हुआ है कि इससे हम जगह जगह देखिए मिश्र वाक्य का कमाल है इसमें। जिन्हें आ गया मिश्र वाक्य हो गया, ये जगह जगह चिन्हित कर दें बच्चों के लिए चिन्हित कर देंगे। बच्चों से कहें बेटा जो चिन्हित स्थल हैं उनको पहचाने। यहाँ नहीं के बाद किसका लोप है? अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं बल्कि खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। तो किसका लोप है? बच्चे पहचानेंगे, लोप को पहचानना सीख जाएंगे। जैसे अभी मैंने फिर भी का उदाहरण दिया, फिर भी में जबकि का लोप हो गया, जबकि प्रत्यक्ष रूप में आया। ऐसे ही यहां पर बल्कि का लोप हो गया, सरल वाक्य नहीं बनेगा। यहां पर बल्कि लग गया है तो संयुक्त वाक्य आएगा। कहीं की का लोप होगा, देखिए यकीन ना आता हो तो यहां पर किसका लोप है बच्चे को हम बताएं तो यदि का लोप है। इस प्रकार अगर हम अभ्यास करवा रहे हैं तो जो कठिनाई स्तर है, जो सही अवधारणात्मक आत्मसातीकरण है, बच्चे को वह आ जाएगा और फिर बच्चे को ना प्रश्न पत्र परेशान नहीं करेगा। पेपर सेटर कहीं छुपाए, यदि को जबकि को छुपा दे, फिर भी लिख दे, हमारे बच्चे को पता चलेगा वो जो अवधारणात्मक आत्मसातीकरण है वह हो चुका, तो बच्चा करेगा, तो कठिन नहीं लगेगा पेपर। आप सहमत हैं? इसी प्रकार देखिए अब मैंने उदाहरण दिया है क्वेश्चन पेपर से, कठिनाई स्तर कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। यहां पर देखिएगा, अभी पहले देखिएगा सूर्योदय होते ही प्रकृति का रूप निखर जाता है और वह मनमोहक हो जाती है। हमें मिश्र वाक्य पहचानने, यदि आ गया तो मिश्र वाक्य बन गया, जो आ गया मिश्र वाक्य बन गया दूसरे वाक्य में। तीसरे में की आ गया, अगर हमने बच्चे को सूत्र विधि द्वारा पढ़ाया और अवधारणात्मक आत्मसातीकरण करवा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि अवधारणा ना आत्मसात होनी चाहिए। अब बच्चे ने आसानी से समझ लिया इसको कि दूसरा तीसरा चौथा कथन बिल्कुल सही है। अब इसी का कठिनाई स्तर आप बढ़ा के देखिएगा, वही लगभग एक वाक्य बदला है, बाकी सारे वही हैं, लेकिन कठिनाई स्तर अब A+ है क्योंकि चारों वाक्य हैं। बच्चा अक्सर सोचता है कि 2 होंगे 3 होंगे, 4 के लिए सोचता नहीं है, यहाँ चारों कर दिए, लेकिन चिन्हित है वो वे स्थल। देखिए यहाँ पर हमने सिखाते समय चिन्हित किए, बेटा यहाँ पे जैसे आया क्या होगा, बच्चों ने कहा मिश्र वाक्य। यदि आया तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। यदि छुपा भी दे, हम सूर्योदय के समय प्रतिदिन टहलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यदि का लोप भी कर दें तब भी मिश्र है, और कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा अगर हम यदि का लोप कर रहे हैं तो। जो आ गया की आ गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमने एक अच्छे कठिनाई स्तर का अभ्यास बच्चों को करवा दिया। ऐसे प्रश्नों के द्वारा अगर अवधारणा स्पष्ट होगी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। आप सहमत हैं? क्योंकि इस वाक्य को ही अगर हम लें, कहना चाहिए इस प्रश्न को अगर हम लें तो इसमें चारों वाक्य मिश्र वाक्य के हैं और अवधारणात्मक संस्कार कहीं है, दिखाई दे रहा है इसमें, जहां बच्चों से हम संवाद कर सकते हैं, बता सकते हैं बेटे क्यों हुआ यह मिश्र। तो इस प्रकार अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो पेपर पैटर्न बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आएगा, कठिनाई स्तर समझ में आएगा। अब जैसे यह है, हम चाहें तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। रचना के आधार पर यह संयुक्त वाक्य, अभी किसी बहन ने प्रश्न किया था कि कथन कैसे गलत हो सकता है, तो कथन इस प्रकार गलत हो सकता है, हम चाहें तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसमें यदि का लोप है, तो अकेला नहीं आता, यदि को या तो साथ लेके आएगा या लोप के साथ आएगा, तो यहाँ पे लोप के साथ है। यदि हम चाहें तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, रचना के आधार पर यह संयुक्त वाक्य है, तो यह मिश्र वाक्य है, तो कथन गलत हो गया। वाक्य के आरंभ में यदि अगर का लोप होने पर संयुक्त वाक्य ना होकर मिश्र वाक्य होता है, कारण सही हो गया, तो आसानी से उत्तर अब आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आप एक बार बता दें, प्रश्नों का स्वरूप अच्छा है? जी सर। प्रश्न है, लग रहे हैं कि कठिनाई स्तर लिए हुए हैं, दक्षता आधारित जो शिक्षा है, दक्षता आधारित जो प्रश्न आते हैं उसी को समेटे हुए हैं, है ना। पेपर पैटर्न का पूरी तरह से निर्वाह हो रहा है, जो पेपर पैटर्न है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सक्रिय भागीदारी आप निभा रहे हैं, है ना। तो चैट बॉक्स देख के बहुत अच्छा लगता है। जी दक्षता आधारित है, उत्तम, बहुत जी उत्तम, सही। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले प्रश्नों के स्वरूप पर चर्चा हम करें, और इसी प्रकार का ना आप अभ्यास अगर हम बच्चों को करवा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, जो लोग भूत और भविष्य में न उलझकर वर्तमान में जीते हैं वे ही जीवन का आनंद लेते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। अब ये उच्च चिंतन क्षमता है,
बच्चे को पता होना चाहिए एक उद्देश्य एक विधेय से ही सरल वाक्य बनेगा, तो छांट लेगा यहाँ पर। भूत और भविष्य में ना उलझकर वर्तमान में जीने वाले लोग जीवन का आनंद लेते हैं। समझ गया वो कैसे दूसरे वाक्य अलग हुए, जिन आ गया तो सिरे से कट कर देगा, है ना। अगर तो आ गया तो उसे पता है यहां पर यदि का लोप है, कट करेगा। वे लोग ही जीवन का आनंद ले पाते हैं, जो आ गया कट करेगा। एक ही बचा कि जो सही है, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय है एक मुख्य क्रिया है। समझ गया बच्चा आसानी से। उसे समझ में आना चाहिए कि कौन सा गलत है, तो उसको समझ में आ रहा है। जिन लगा हुआ है तो मिश्र वाक्य है, जो लगा हुआ है तो मिश्र वाक्य है, तो है तो यदि का लोप भी आया तो समझ रहा है कि मिश्र वाक्य है। तो हमें इस स्तर का अगर अभ्यास करवा दें तो हमारे बच्चे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब बच्चे आसानी से बता देंगे। अच्छा अभ्यास है। चारों ओर फैले पानी के बीच खड़ा पेड़ अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। तो एक उद्देश्य एक विधेय आ रहा है, मुख्य क्रिया एक है, और जो क्रिया आई है सहायक क्रिया एक दिखाई दे रही है, तो सरल वाक्य हो गया। चारों ओर पानी ही पानी और यह पेड़ हिम्मत के साथ तनकर खड़ा है, और से जुड़ गया, संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार सबके उत्तर बच्चे अच्छी तरह से दे देंगे, है ना। आप चिन्हित कर देंगे प्रारंभिक जब अभ्यास करवा रहे हैं तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे और को चिन्हित कर दिया, यहाँ पे चूंकि और इसलिए को चिन्हित कर दिया। बच्चे उस अवधारणा को आत्मसात करते हैं इससे, है ना। चूंकि और आपने इसलिए को चिन्हित किया, आपने कहा बेटा क्यों ये चिन्हित किया गया है, चूंकि इसलिए, क्या होगा। कुछ बच्चे संयुक्त भी बताएंगे, कुछ मिश्र बताएंगे। मिश्र हुआ तो क्यों हुआ, आपने बच्चों से पूछा। अवधारणा आत्मसात हो रही है ना। जो आ गया मिश्र हो गया, यहाँ और आ गया तो संयुक्त हो गया, यहाँ की आ गया तो मिश्र हो गया। इस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। बच्चे शब्द को देख के पहचाने कि अमुक वाक्य जो है मिश्र है, अमुक वाक्य संयुक्त है। इस प्रकार पहचान होनी चाहिए उनको। कठिनाई स्तर अपने आप आसान हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है मेरे भाई बहनों को सामग्री अच्छी लगी होगी, जी और सर। जो रणनीति है वो स्पष्ट है एकदम, है ना, कि हम उस स्तर का अभ्यास करवाएंगे। प्रश्नों का निर्माण भी इस स्तर का कर लेंगे। स्लाइड का इसका फोटो आप ले लीजिएगा, और वैसे तो स्लाइड भी, ये पूरी पीपीटी भी शेयर आपके साथ की जा सकती है ना। पदबंध पर आ रहे हैं, एक एक करके ले रहे हैं। जो टॉपिक हैं उनको एक एक करके ले रहे हैं। उनमें क्या कठिनाई स्तर है, पेपर पैटर्न जो है उसमें क्या अपेक्षा की गई है, उस टॉपिक से कठिनाई स्तर कहाँ बढ़ाया गया है, उस पर हम बात कर रहे हैं। सरल युक्तियां भी उसके साथ हम बता रहे हैं। देखिए तो क्षमा जी चाहूंगी सर, जैसे अभी ये स्लाइड हमारे सामने है, जी अब हम बच्चे यहाँ पर जी अब ये हाईलाइटेड चीजें जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं, और वो जी चीज हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है, इसलिए वो चीजें, वो अवधारणाएं हमारे, मतलब हम हमेशा अपने, जी हमारी बोलते हैं ना, रिवीजन हो रहा है, पुनरावर्तन हो रहा है, हमारी जी सारी शंकाएं दूर हो रही हैं। तो जी जैसे ही हम हाईलाइट करते हैं, जैसे ही हम अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जी फलक पे भी, शाम पट पे भी यदि हम अलग अलग बिल्कुल। रंगों का इस्तेमाल करते हुए या सर्कल करें, अंडरलाइन करें, तो बच्चों का ध्यान उस पे जाता है। ये बिल्कुल। अच्छा यहाँ बीच में आ रहा है, अच्छा ये संयुक्त है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अच्छा ये मिश्र होगा। तो उनका ध्यान ज्यादा अच्छे से उस और चीजों पर पड़ता और ना नई शिक्षा नीति में इसी को अवधारणात्मक आत्मसातीकरण के उपाय कह गए हैं, कि अवधारणात्मक आत्मसातीकरण के लिए कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग करें। तो जितना भी बच्चे के साथ हम संवाद करेंगे, बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे, तो वे अवधारणाएं आत्मसात कर लेंगे। है। कहीं ना कहीं इसे ना एक्टिविटी के तौर पे ज्यादा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शाम पट पे 4 वाक्य लिखने की बजाय कक्षा में छात्रों को जब हम मतलब खड़ा करते हैं कि चलो आप संयुक्त वाक्य, आप सरल वाक्य, आप मिश्रित वाक्य हो, और जी अलग अलग वाक्य देते हैं, अब बताओ बच्चा ये इसको कहाँ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। जितना ज्यादा इंटरैक्टिव करेंगे वो बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। वास्तव में अब देखिए, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके कि शीर्ष पद से पहचान है, संज्ञा पदबंध। पदबंध पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर शीर्ष पद संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा, है ना। उत्तर कैसा कैसी कैसे से मिल जाता है, कैसी मेज तो कीमती लकड़ी से बनी। इसी प्रकार अगर सर्वनाम है शीर्ष पद तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। जरा सी बात पर गुस्से से भर जाने वाला वह, यहाँ पर वह आ गया तो हमें पता चल गया कि ये शीर्ष पद वह सर्वनाम है, इसलिए पता चल गया कि यह है जो है
सर्वनाम पदबंध है। इसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम से पूर्व का हिस्सा विशेषण होता है। कीमती लकड़ी से बनी तो यह विशेषण हो जाएगा, क्योंकि मेज से पूर्व आया। जरा सी बात पर गुस्से से भर जाने वाला, वाला तक आया तो विशेषण हो गया। और विशेषण पद मिलके भी विशेषण पदबंध बनाते हैं। बहुत ईमानदार, परिश्रमी व निष्ठावान। तो इससे हमने क्या किया, बच्चों को बहुत संक्षिप्त सामग्री उनको उपलब्ध करवाई, लेकिन सारगर्भित, और सारे कठिनाई स्तर उसके अंदर शामिल कर लिए। इसी प्रकार क्रिया पदबंध का उदाहरण समझाया तो देखिए 3 उदाहरण दिए। गीत सुनाता जा रहा था तो गीत आ गया तो वो गलत हो गया। डूबकर गीत सुनाता जा रहा था फिर गलत हो गया, क्योंकि क्रिया पदबंध में क्रियापद अपने साथ किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं करते। यहाँ पे सुनाता जा रहा था तो सही है। तो एक उदाहरण द्वारा देखिए क्रिया पदबंध समझा दिया गया। इसी प्रकार अगर क्रिया विशेषण समझाना है तो हमने उन उदाहरणों का ले लिया, जैसे लुढ़कते हुए, गिरते हुए, जल्दी जल्दी, तेज तेज, जोर जोर से आदि। क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। बाज ने आसमान में उड़ते हुए चिड़िया पकड़ी। कैसे पकड़ी? तो आसमान में उड़ते हुए। इतना तेज तेज मत बोलो। कितना, कैसे मत बोलो? इतना तेज तेज। पिछले वर्ष की अपेक्षा तो की अपेक्षा आ गया, अव्यय पदबंध कहलाता था कभी, लेकिन आज बोर्ड की भाषा में अगर इसको कहे तो बोर्ड इसको स्वीकार करता है। जो अव्यय पदबंध भी हैं वे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा दिया। इसके बाद हमने बोर्ड पर श्यामपट पर खेल लिए, हम ये खेले हम बहुत अच्छी तरह से। देखिए क्या पुनरावृत्ति में बच्चे कैसे प्रतिभाग कर रहे हैं। न्याशा अलग उदाहरण दे रही है, वंश अलग उदाहरण, शुभम, तेजस्व, समर्थ, साहिल ब्लूम टैक्सोनॉमी का शीर्ष है, क्योंकि बच्चे अब सृजन कर रहे हैं। तो सब कुछ आएगा कक्षा में, बच्चे कठिनाई स्तर को समझेंगे हम, अगर हम इस प्रकार पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए अभी हमने देखा, अब इसके आधार पर देखिए उसको देखिएगा। अब प्रश्न देखिएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। कठिनाई स्तर देखिए, कुछ विद्यार्थी मन लगाकर पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई को आदर्श मानने वाले विद्यार्थी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ाई व परिश्रम दोनों ही मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया करते हैं। पहले जमाने में विद्यार्थी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अध्ययन करते थे। अब देखना है कौन से किन वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध आया। तो सही उत्तर क्या होगा, एक बार बताएं। और देखिए यहां पर इसी को कठिनाई स्तर बी कर दिया। बिल्कुल समान वाक्य हैं, आप पहले इसको देख लीजिएगा, है ना। किया करते हैं, इसमें एक ही आया तो क्रिया पदबंध हो गया। यहां पर पढ़ाई को आदर्श मानने वाले विद्यार्थी, संज्ञा पदबंध हो गया। मन लगाकर पूरी तन्मयता के साथ, तो क्रिया विशेषण बना, और नीचे क्रिया विशेषण बना, है ना। इसी को ये बी प्लस पर आ गया, बी पर आ गया, और अगर इस रूप में देखें तो ए प्लस बन गया। तो इस प्रकार प्रश्नों का निर्माण ऐसा हो कि वही प्रश्न जरा से अंतर पर बी प्लस दिखाई दे, जरा से अंतर पर ए प्लस हो जाए। तो यहां पर वो ए प्लस है कि बच्चे को कहीं ना कहीं बिना रेखांकित किए दिया है, बच्चा उसको समझ रहा है, उसको अगर पूरी तरह से उसका अभ्यास है तो पहचान जाएगा कि के साथ किस में आता है, के साथ क्रिया विशेषण में आता है, तो पहचान गया उसमें। मन लगाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया किसके साथ आती है, क्रिया विशेषण में आ जाती है, मन लगाकर पूरी तन्मयता के साथ। और ये तक जो होता है वह क्रिया विशेषण में होता है, अव्यय है, तो क्रिया विशेषण में आएगा। तो इस प्रकार उसने छांट लिया कि पहला और चौथा सही है। अच्छा अभ्यास है, एक बार फिर चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, अच्छे स्तर का अभ्यास है ये? जी सर, जी चैट बॉक्स में उत्तर आने लग गए। जी जी, जी सर, धन्यवाद, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं समास पर, और समास एक नए रंग में आप देखिएगा, लयात्मक, है ना, और उसमें कठिनाई स्तर सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ उसके अंदर समाएगा। आप देखिएगा, छोटा या संक्षिप्त रूप में है समास का अर्थ यही,
समझ भेद भी आ जाए तो फिर कविता यह व्यर्थ नहीं। दो पद मिलकर एक बने जब वे समस्त पद कहलाते। अगर खोल उनको लिख दें सामासिक विग्रह बन जाते। पूर्व पद कहलाता पहला और दूसरा उत्तर पद। एक दूसरे के स्वभाव गुण दोनों को भाते बेहद। सच कह दें तो जीवन में भी मेल जोल जब बढ़ता है। रिश्ते नातों में भी तब तब रंग प्रेम का चढ़ता है। कुल 6 भेद हुआ करते हैं इनको भी अब जानेंगे। सहज युक्तियां अपना कर गहराई से पहचानेंगे, गहराई से पहचानेंगे, गहराई से पहचानेंगे। अब देखिए हर समास को काव्यात्मक रूप में और अच्छे उदाहरणों के साथ, जहां कठिनाई स्तर है, जो बोर्ड पैटर्न के अनुकूल है, जो ये जो नया प्रश्न पत्र प्रारूप है जो कह रहा है, वो गीत में आप सुनिएगा और कैसे पहचान के नियम है आप सुनिएगा। द्वंद्व है जोड़ा और बीच में कभी कभी या भी आए। नीचा ऊंचा सुख दुख लाभा लाभ चाय कॉफी भाए। राधे कृष्ण चराचर सत्या सत्य कहो या नागार्जुन। और हिताहित पाप पुण्य या युद्ध शांति कृष्णार्जुन। जोड़े से पहचान है इसकी बहुत सरलता से आता। 6 भेदों के बीच द्वंद्व यह झटपट पहचाना जाता। पद प्रधान दोनों होते हैं संग में यह भी याद रहे। ऐसा करके मन में बसकर द्वंद्व सदा आबाद रहे। द्वंद्व सदा आबाद रहे, द्वंद्व सदा आबाद रहे। अब देखिए 8 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां नहीं 8, और इसमें उदाहरण कितने हो गए? नीचा ऊंचा सुख दुख, सामान्य कठिनाई स्तर, लाभालाभ कठिनाई स्तर A+, चाय कॉफी फिर एक सामान्य स्तर, राधे कृष्ण चराचर सत्यासत्य नागार्जुन कठिनाई स्तर, हिताहित पाप पुण्य युद्ध शांति कृष्णार्जुन। इतने सारे उदाहरण 8 पंक्तियों में आ गए। समझाने की विधि आ गई कि कब और को भी और भी भाता है, इसको या भी भाता है। इसी प्रकार आगे चलेंगे देखिएगा। और इसके बाद हम पेपर के प्रश्न पर, हम जो नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप है और नवीन जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब देखिएगा आप, 2 द्वि तृतीय चतुः और चौ पंच तथा षड सप्त कहें। 8 अष्ट 9 9 10 आते, शत सहस्र भी संग रहें। पहला पद गिनती होता है दूजा पद संज्ञा आए। समूह लिखें या समाहार लिख विग्रह इनका हो जाए। गिनती के जो बाद लिखा हो उस पद में ओ जुड़ जाता। फल का फलों रत्न का रत्नों ऋषि का ऋषियों हो जाता। 3 फलों का समाहार या 5 फलों का समूह लिखें। छठा द्विगु की समाहार में या समूह में साफ दिखें। गिनने योग्य अगर ना हो तो समाहार आ जाता है, और अगर गिन पाए उसको उसे समूह ही भाता है। यह प्रश्न अक्सर आता है, कहाँ समूह लगाएं कहाँ समाहार। सरलीकरण के दौर में दोनों जगह दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं, है ना, लेकिन बच्चों को शास्त्रीय परिचय होना चाहिए। पर सरलीकृत रूप यही अब इसमें सिर ना चकराएं। जहां हो मर्जी समूह लगाएं समाहार या लिख आए। इसका उत्तर पद प्रधान है पहला संख्यावाची है। इसके शब्दों की संख्या हिंदी में अच्छी खासी है। नहीं द्विगु अब कठिन रहा सब समझ सरलता से आया। पहले पहले कठिन द्विगु था अब अपने मन को भाया, अब अपने मन को भाया। अच्छा है, एक बार बताएं, अच्छा प्रयोग है। सब कुछ कठिनाई स्तर इसके अंदर आ जाएगा, है ना, सब सिमटेगा इसके अंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, उत्कृष्ट, उत्तम। धन्यवाद। आगे देखिएगा। 2 रंगा 2 पहर दुनाली त्रिफला और त्रिलोक पढ़े। द्विगु लगेगा सहज सहजता से इसके पथ आप बढ़े। चौराहा पंचामृत षडभुज सप्तद्वीप सप्ताह मिले। 4 5 6 7 अंक का पहले पद में रूप खिले। अष्टाध्यायी और 98 नवरस नवनिधि पहचाने। फिर शताब्दी सहस्राब्दी को श्रीमन बस द्विगुमाने। अब्द वर्ष दिन कहलाता भुज को भुजा मान लेना। अन्नी आनों को कहते अब सही सही उत्तर देना, अब सही सही उत्तर देना। आगे तो देखिए द्विगु आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे उदाहरण, नए उदाहरण इसमें आ गए, है ना।
अब्द वर्ष को कहते हैं, बच्चे को पता चलेगा। अह दिन को कहते हैं। बच्चों को गीत सुनाना जरूरी नहीं है, यहाँ से कुछ उदाहरण लेकर अब बच्चों से संवाद किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। लेकिन गीतों के द्वारा सिर्फ उसको वो हमेशा लंबे समय तक याद रखते हैं। हाँ नहीं, अगर समय हो तो सुनाए बच्चों को, अगर समय है तो सुनाना है। अब देखिएगा आगे, पहचान भी इसमें, गीत की विशेषता यह है कि इसमें पहचान भी है, उदाहरण भी हैं, सब कुछ आ रहा है। कोका की के द्वारा से में पर या के लिए खड़े, तत्पुरुष नामक समास के माने जाते मित्र बड़े, इनसे ही पहचान करो बस समझ तत्पुरुष आएगा, कठिन लगेगा नहीं सरलता से पहचाना जाएगा। यशवर्धन सेना नायक रण कौशल या फिर शौर्य कथा, मनोचिकित्सक मनोरोग मन प्रीत कहें या मनोव्यथा। एक प्रवाह है ना, उदाहरणों का प्रवाह है ना, वो दिखाई दे रहा है। कर्म साध्य स्वर रचित रसोई घर प्रयोगशाला कह लें, योग युक्त आनंद मग्न देशाटन अध्ययन रत रह लें, देशाटन अध्ययन रत रह लें, देशाटन अध्ययन रत रह लें। तो कितने उदाहरण बच्चे को मिल जाएंगे, है ना। यशवर्धन, सेना नायक, रण कौशल, शौर्य कथा, मनोचिकित्सक, बहुत सारे उदाहरण। आगे देखिएगा। पंचक्की घोड़ा गाड़ी हथकड़ी युधिष्ठिर पहचानो, दही बड़ा हथकरघा सबको तत्पुरुष महोदय मानो, अकर्मण्य अज्ञान अनिच्छा न्यो तत्पुरुष समझ लेना, जब अन आए पहले न्यो कह करके उत्तर देना, नहीं कठिन तत्पुरुष रहा कारक चिन्हों से जान लिया, उत्तर पद इसका प्रधान है यह भी हमने मान लिया, यह भी हमने मान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब अव्ययी भाव देखिए, कठिन है लेकिन कैसे इसमें गीत में सरल युक्तियां आई, जो कठिनाई स्तर है वो काव्यात्मक प्रवाह में स्पष्ट हो गया। देखिएगा, सामासिक पद अव्यय में ढल छटा निराली बिखराते, तीन तरह से बनते हैं ये इनसे पहचाने जाते, आबा भर प्रति यथानिस आदि ये अव्यय पद निर्माण करें, इन्हें सीख कर बच्चों अपने मन का शब्दागार भरे, आजीवन बाइज्जत भरसक प्रतिदिन यथा समय आए, निस्संदेह निर्बाध सहजता ये से यह मन में बस जाए, गली गली और गांव गांव पल पल में हर का रस घोले। जो रेखांकित है उसमें हर है, गली गली हर गली, गांव गांव हर गांव, पल पल हर पल, ये सब अव्ययी भाव बन गए बतलाते हैं बिन बोले, बतलाते हैं बिन बोले। अब आगे भी उदाहरण देखिएगा। हाथों हाथ समझ कर बातों बात इसे मन में रखना, और दिनों दिन इस समास का स्वाद सहजता से चखना, साफ साफ कहना समझाना चले न कानों कान पता, बनो जीनियस इन वाक्यांशों में बस अव्ययी भाव बता, यथाशक्ति पल पल नित नित हो या फिर बीचों बीच कहें, सदा सर्वदा ये सबके सब बनकर अव्यय संग रहें, ये युक्तियां अगर जान ली यह समास आ जाएगा, इन तीनों ही पहचानों से बाहर कब जा पाएगा, बाहर कब जा पाएगा। अच्छा है। अब एक बहुत कठिन उत्तम से। समास, अब एक कठिन समास की ओर। रविंद्र जी कह रहे हैं कि हम इसीलिए आपकी कार्यशाला जी में हमेशा शामिल होते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। अब देखिए, कर्मधारय समास कठिन है, लेकिन कैसे वो कठिनाई स्तर, जब मैं पेपर ये पिछले महीने आया, मैं देख रहा था कठिनाई स्तर कहाँ का है, मैंने इस गीत में देने का प्रयास किया। तो है जो रूपी के समान विग्रह करने पर जब आए, कर्मधारय तब होता है ये सब ऐसा बतलाएं, प्रथम विशेषण और दूसरा बन विशेष आ जाता है, ऐसे में है जो विग्रह के संग हमेशा आता है। अगर विशेषण विशेष है तो एक सूत्र बन गया, विशेषण प्लस विशेष इज इक्वल टू है जो। नील गाय और कहो महोत्सव सुन लो सामासिक कलरव, नीली है जो गाय देखिए और महा है जो उत्सव, तो है जो आ गया। अब देखिए कितने सारे उदाहरण आएंगे, देखिएगा भाषिक प्रवाह देखिएगा। सुविचार सद्भाव कहें या शुभागमन शुभ कर्म कहें, पीत पुष्प नीलांबुज नीलाकाश सुयश सद्धर्म कहें, है जो इनके बीच लुप्त है विग्रह पर आ जाएगा, रूप विशेषण और विशेष का खिल खिल कर मुस्काएगा, विग्रह करके देखें इनका इनको आत्मसात कर लें, बड़ी सहजता से इन सबको हम मन के अंदर भर लें,
हम मन के अंदर भर लें। तो जहां विशेषण विशेष्य है जो आएगा। सुविचार, अच्छे हैं जो विचार, है ना। शुभागमन, शुभ है जो आगमन आदि। अब देखिए जहां कठिनाई स्तर आ रहा है उसको कैसे हाईलाइट किया गया है, कैसे समझाया गया है उसको देखिएगा। अगर इस कठिनाई स्तर को बच्चा आत्मसात कर लेता है तो फिर पेपर सेटर कितना ही कठिनाई स्तर बढ़ाए, फिर सब कुछ सहज हो जाएगा, है ना। मन और है, एक और है रूप देखिए, है उपमेय उपमान लिए। मन थोड़ा एकाग्र करें तो सहज सरल पहचान लिए। क्रोध बहुत बढ़ जाता जब वह अनल ज्वाल सा बन जाता। क्रोध यहाँ उपमेय और उपमान अनल है कहलाता। क्रोधानल या क्रोधाग्नि में, चरण कमल भव सागर में। उपमेय और उपमान भर गए हैं कविता की गागर में। अब कैसे समझाएं, क्या उपमान है, क्या उपमेय है, कैसे देखिए। क्रोध चरण भव की तुलना की, इस हेतु उपमेय कहें। अनल कमल सागर से की है, ये तीनों उपमान रहे। यानी जिसकी तुलना की उपमेय, जिससे तुलना की उपमान। भगवान जी के चरणों की तुलना की तो चरण उपमेय, और किससे की, कमल से की तो उपमान। ऐसे पहले यदि उपमेय लगा हो, फिर आए उपमान जहां। लगा बीच में रूपी करते सामासिक विग्रह वहां। अब एक सूत्र बन गया, उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू रूपी, और उपमान प्लस उपमेय इज इक्वल टू के समान। तो ये कठिनाई स्तर है जो पेपर में दिखाई देता है, वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों को अगर कठिनाई स्तर इस प्रकार बता दिया जाए तो बच्चे उसको पहचानेंगे। उपमेय पहले है, उपमान बाद में, रूपी ही आएगा। उपमान पहले लगा दिया, उपमेय बाद में लगाया तो किस समान आएगा। देखिए, भव रूपी सागर, भव सागर में रूपी की छटा दिखे। विद्या रत्न संतान रत्न में इसका, विद्याधन संतान रत्न में इसका ही सौंदर्य सजे। पहले गर उपमान लगा हो, के समान संग खोलेंगे। अब अगर के उपमान पहले है तो के समान के संग खोलेंगे। अमृत के समवाणी अमृतवाणी कहकर बोलेंगे। स्वर्णलता और कनकलता में, शशिमुख अमृत वचनों में। के समान की सुंदरता का रूप बसा अब नयनों में। है जो रूपी के समान से, इस समास को जाना है। उत्तर पद इसका प्रधान है, सही सही पहचाना है, सही सही पहचाना है। तो एक कठिन समास वो काव्यात्मक प्रवाह में कैसे आया, जो कठिनाई स्तर है सब कुछ आ गया, है ना। सूत्र बन गए इसके अंदर से, इस गीत के अंदर से सूत्रों ने आकार लिया। कर्मधारय समास समझाना है तो विशेषण प्लस विशेष इज इक्वल टू है जो, है ना। उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू रूपी, और उपमान प्लस उपमेय इज इक्वल टू के समान। तो यह सूत्र केवल अगर बच्चों को बता दिया जाए और थोड़ा सा अभ्यास करवा दिया जाए तो कितना ही कठिन स्तर क्यों ना आ जाए, बच्चे सही उत्तर देंगे। आप सहमत हैं? एक बार चैट बॉक्स में आ जाइएगा जी। देखिए, एक प्रश्न है, छात्रों में उपमेय उपमान की समस्या रहती है। एक बार इस गीत को जरूर सुनाइएगा और जो सरल उपाय है उसको जरूर बताइएगा, मुझे विश्वास है बच्चे समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अब देखिएगा, जिसका जिसकी, जिसका जिसकी, जिसके जिनका जिनकी, जिनके आते हैं। सभी शब्द बहुव्रीहि समास के बारे में बतलाते हैं। अन्य पद इसमें प्रधान ये उसी ओर ले जाते हैं। अपने पद का न अन्य नाम ये सही सही बतलाते हैं। अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य बहुव्रीहि बने। गज समान आनन, गज समान आनन है जिसका, श्री गणेश बहुव्रीहि बने। केवल जिसका जिसकी आए तब भी बहुव्रीहि मानेंगे। विग्रह के इस अंतिम पद से हम इसको पहचानेंगे, हम इसको पहचानेंगे। तो सब कुछ आ गया, जिसका जिसकी जिसके, जिनका जिनकी जिनके अगर आ रहे और आगे अन्य कोई नाम भी आ रहा है तो बहुव्रीहि है। अगर नहीं आ रहा है, केवल जिसका जिसकी जिसके पे रुक रहा है, जिनका जिनकी जिनके पे रुक रहा है, मान लीजिए मृग नयनी है, मृग के समान नयन है जिसके, तो बहुव्रीहि बनेगा। आगे देखिएगा,
त्रिनेत्र शिव चक्रधर विष्णु श्वेतांबर मां शारद है, ऐसे समस्त पदों को जानो यह गागर में सागर है। वंशीधर मुरलीधर गिरधर नाम बताएं अब उनके, नाम षडानन नाम गजानन नाम चतुर्भुज हैं किनके। चंद्रमुखी मृगनयनी सुमुखी में भी बहुरी बस जाता, जिसका जिसकी से समास ये समझ सरलता से आता। यह सामासिक कविता हमको हर समास समझाएगी, देखें इस पर आप सभी की कितनी ताली आएगी, कितनी ताली आएगी, कितनी ताली आएगी। एक बार आ जाएं चैट बॉक्स में ताली लेके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। नहीं, मन गदगद हो गया है ना। आप सुनते हैं, तन्मयता से सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना। बहुत ही धन्यवाद, है ना। अब क्या है, जब हमने बच्चे को कठिनाई स्तर बता दिया, सब कुछ अच्छी तरह से आ गया, है ना, तो फिर कठिन नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी सामग्री निर्माण करें, बोर्ड का प्रश्न पत्र प्रारूप जरूर देख लें। प्रश्न पत्र का जो कठिनाई स्तर है उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लें। उसके बाद अगर हम कक्षा में जाते हैं तो फिर बच्चा उस स्तर का वो देखता है। अब देखिए, संक्षिप्त रूप में समास की त्वरित पुनरावृत्ति, इसका फोटो खींच लीजिए। बच्चा बहुत जल्दी इसको 5-5 उदाहरण अगर बच्चे को दे दिए, बच्चा समझ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक फलानुसार वाला जरूर बच्चे को बता दें कि फलानुसार, मतानुसार, विचारानुसार ये तत्पुरुष समास नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि विग्रह होता है फल के अनुसार, मत के अनुसार, है ना, विचार के अनुसार, आज्ञा के अनुसार आदि। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे समास की त्वरित पुनरावृत्ति कैसे। उपमेय उपमान के बाद में, उपमेय के बाद अगर उपमान आया है तो रूपी लगा हुआ है, तो यहां पर समझाया भी गया है ना। अब यहां पर है के समान लगाए, कनकलता, स्वर्णलता, मृगलोचन, घनश्याम, अमृत वचन, कमल नयन, प्राण प्रिय, अमृतवाणी, कुसुम कोमल, सब में उपमान पहले है तो के समान लग गया है ना। यह आपकी अपनी पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण से था, है ना, आप जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा प्रश्न पत्र किस प्रकार, जो प्रश्न है किस प्रकार आया है। देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न केस स्टडी टाइप प्रश्नों में आते हैं, जो गहराई वाला अध्ययन मांगते हैं, गहरा अध्ययन, है ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बच्चों को जरूर तैयार कर दें। इस प्रकार के प्रश्न आप जरूर दें प्रश्न पत्र में। जैसे उदाहरण दे दिए और बच्चा मैचिंग कर रहा है, तो मैचिंग से जब तक उसको पूरा अध्ययन वो गहराई से नहीं किए होगा तब तक मैचिंग सही नहीं आएगी, है ना। तो ये वाले इस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए दूसरा प्रश्न एक देखिएगा, यहाँ पर इसी प्रकार का प्रश्न है यह भी, जहां मैचिंग है ना। सुबुद्धि आ गया, पंचरत्न, सुबुद्धि, पंचरत्न, मेले तमाशे, गजानन, ये आ गया, और इसको मैचिंग करना है, सुमेलित करना है। तो उसको अच्छे स्तर का जो हम कहते हैं अवधारणात्मक संस्कार, अवधारणात्मक आत्मसातीकरण, वह कहीं ना कहीं मूल्यांकित होता है। अगर हम अवधारणात्मक संस्कार को मूल्यांकित कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित हो जाते हैं। यहां पर देखिए, यहां और बड़ा कर दिया, जहां 5 उदाहरण दे दिए। तो इस प्रकार दक्षताधारित शिक्षा है। अगर बच्चे को अभ्यास है, अवधारणाएं आत्मसात हो गई हैं, बच्चे को पहचान बहुत अच्छी तरह से हो गई है, तो इन प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से वो दे देगा। अब यहां देखिएगा, इस पेपर पैटर्न का ही है जो अभी पिछले महीने आया, उसी का उदाहरण यहां पर है। शताब्दी, सप्ताह, दशावतार में द्विगु समास है, कथन है। इन पदों में पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण सही है, तो ये जो है कथन और कारण दोनों सही है। इसका उदाहरण था। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए नवनिधि। अब देखिए कठिनाई स्तर A+ है ये। नवनिधि, नवरस, नववर्ष, नवरत्न, सब नव से बने हैं। में एक शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। कथन सही हो गया, क्योंकि एक शब्द इसमें द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अब कारण लिखा है नववर्ष में, नव का अर्थ नौ ना होकर नया है, सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से अगर तैयारी होती है बच्चा, यह भी प्रश्न देखिए प्रश्न पत्र का है। समस्त पद के सही विग्रह वाला वाक्य चुनिए।
तो दिखाई दे रहा है, सत्याग्रह में वो सही दिखाई दे रहा है। निडर, डर के साथ, तो ये गलत हो गया। गली गली, गली और गली, अभी गीत में आया था गली गली, है ना, पल हर पल गली गली और गांव गांव में हर का रस घोले, तो हर नहीं लिखा हुआ है, गलत हो गया। सद्धर्म, अच्छा है धर्म जिसका, तो बहुरी नहीं जा रहा है ये। सद्धर्म अच्छा है जो धर्म, शुद्ध है जो धर्म, इस प्रकार आएगा। तो सत्याग्रह सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मुहावरे पर आते हैं, क्योंकि चर्चा का समय एकदम आगे बढ़ता जा रहा है और अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, है ना। तो जहां तक भी आज संभव हो पाएगा हम इसको इस पर चर्चा करेंगे, और जो बचेगा उसको अगली कार्यशाला में हम उसको लेंगे जरूर, अगली वेबिनार में। मुहावरे का स्तर, मुहावरे किस प्रकार अभ्यास करवाए जाए, जो पाठ्यक्रम में जो पाठ के अंदर हैं उनका हमें अभ्यास करवाना चाहिए, उनको चिन्हित करवा दें। उसके बाद किस प्रकार के प्रश्न आकार लेते हैं, अब देखिएगा आप कैसे बिल्कुल जो उच्च चिंतन क्षमता है उसको दिया, क्योंकि अंधा चोट निशाना पड़ना के अर्थ से मिलता जुलता मुहावरा है। बड़े भाई साहब में आया और चारों मुहावरे भी अंधे से शुरू किए गए। अंधा होना, अंधे की लाठी होना, अंधे को दो आंखें मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो एक कठिनाई स्तर आया। अगर उच्च चिंतन क्षमता है, बच्चे ने अच्छी तरह से उसके अर्थ को आत्मसात किया है, तो समझ जाएगा, है ना, उत्तर चिन्हित है। बेचारे लोग सोच रहे थे कि पुलिस अब सख्ती नहीं करेगी, लेकिन भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने बेकसूरों पर लाठीचार्ज करके डैश, आंखें फेरना, मजा चखाना, नानी याद दिलवाना, अपना रंग दिखलाना। तो सबसे नानी याद दिलवाना और अपना रंग दिखलाना, इनमें अगर चुनना है तो अपना रंग दिखला दिया, ज्यादा उचित होगा। तो हमने उसको चिन्हित किया। यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए, आपने मुहावरे वाले इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, जहां सही अर्थ वाले विकल्प चुनने, 4 दिए हैं जिनमें से 2 सही हैं या 1 सही है, तो इसके लिए भी बच्चों को तैयार कर दें। हमें प्रश्न कहीं ना कहीं बच्चों को इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास अब करवा देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बोर्ड परीक्षा करीब है, 2 महीने में स्टार्ट हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार का अभ्यास जरूर करवाना चाहिए। यहाँ भी देखिए, दादाजी ने संस्कार देते हुए कहा, बच्चों हमें कोई भी लक्ष्य हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं मिलता, इसके लिए डैश। अब इनमें कौन से मुहावरे फिट बैठेंगे उनको देखना है, कौन सा विकल्प उपयुक्त बैठेगा उसको देखना है। तो उल्टा सीधा जुगाड़ भिड़ाना गलत हो गया, आसमान सिर पर उठाना गलत हो गया, एड़ी चोटी का जोर लगाना सही है, आकाश पाताल एक करना सही है। अब हमारा उत्तर हो गया 3 और 4, तो यहाँ पर हम उसको चिन्हित कर लेंगे। तो इस प्रकार के आप प्रश्न देखेंगे। तो इस जो पीपीटी में मैंने प्रयास किया कि उन प्रश्नों को लिया जो पेपर पैटर्न से मेल खाते हैं, पेपर पैटर्न के कठिनाई स्तर से मेल खाते हैं। जो नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप है उसके कठिनाई स्तर को ये सिमेटे हुए हैं अपने अंदर। तो अगर हम इस प्रकार का अभ्यास करवाते हैं बच्चों को, तो कठिन नहीं रहेगा उनके लिए, पेपर कठिन नहीं रहेगा। और देखिए, अगर हमने बिल्कुल सरल सरल अभ्यास करवा दिया है ना, तो फिर जब कठिनाई स्तर बढ़ के पेपर आएगा तो बच्चे फिर तो हिल जाएंगे, है ना। तो यहां पर हमें यही ध्यान रखना है। अब देखिए, ये प्रश्न कितना अच्छा बन गया है। आटे दाल का भाव पता चलना मुहावरे का सही अर्थ है। कठिन विषयों की पढ़ाई भी सहजता से कर पाना, खरीदारी करने में निपुण होकर मनचाहे दाम न देना, जीवन की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हो जाना, अपनी मेहनत की पहली कमाई हाथ में आने पर खुशी मिलना। तो अच्छे स्तर के विकल्प हैं, बच्चा चुनेगा जीवन की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हो जाना, है ना। आपको अच्छा लग रहा है सबको? सामग्री अच्छे स्तर की है? बहुत बढ़िया सर। सरोजनी नेगी जी पूछ रही है, क्या तीसरी से 5वीं में भी यह प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, उदाहरण उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए, है ना। जहां उदाहरण की बात है वो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल बना लें। जो विषय उनके हैं, मान लीजिए हमें अब वहां पर संज्ञा पढ़ानी है, तो संज्ञा पढ़ाने में मान लीजिए 5वीं में पढ़ा रहे हैं हम, उनको गीत सुना दें। अब देखिए कितना अच्छा गीत रहेगा। चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने, हो विशेष गर कोई नाम, वह व्यक्तिवाचक श्रीमान। एक सचिन और एक है लारा, एक है चंदा एक ध्रुव तारा, एक हिमालय एक है दिल्ली, अब ना उड़े संज्ञा पर खिल्ली,
एक व्यक्तिवाचक की शान, बच्चों इसका रखना ध्यान, खूब बसा लें मन में इसको, बहुत सही है यह पहचान। तो ऐसे करके हमने नवाचार किया। वहां पर 5वीं कक्षा में किया जा सकता है। तीसरी कक्षा में है, मान लीजिए हमें की पहचान बतानी है, तो नाम के बाद की, काम के बाद की, यानी नेमिंग वर्ड्स के बाद में की आएगी, एक्शन वर्ड्स के बाद में की आएगी। तो इस प्रकार के प्रयोग वहां भी किए जा सकते हैं। जी, अभी थोड़ा सा समय का अभाव हो रहा है, अभी हम रचनात्मक लेखन की ओर ही बढ़ रहे हैं। मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, उसमें इस प्रकार का आ रहा है, तो हम रचनात्मक लेखन की ओर ही जा रहे हैं। देखिए, एक उच्च चिंतन क्षमता पर आधारित इस प्रश्न को भी देख लें, जो मुहावरे पर आधारित है। ऐसा अभ्यास भी हमें करवाना चाहिए। चेहरा मुरझाना, चमड़ी उधेड़ना, आंखें फोड़ना, घोंगा होना, इनके अब मैच करना है, तो मैच करना, चेहरा मुरझाना का उदास हो जाना, चमड़ी उधेड़ना बुरी तरह पीटना, आंखें फोड़ना बहुत अधिक पढ़ना, घोंगा होना मूर्ख होना। तो इस प्रकार मैचिंग वाले भी हमें देने चाहिए। अब हम आ रहे हैं रचनात्मक लेखन पे, क्योंकि देखिए समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन हम चर्चा करेंगे। जो कठिनाई स्तर है आज के इस, आप सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना। और जो चर्चा बचेगी उसको हम अगली कार्यशाला में जरूर करेंगे, अगली वेबिनार में जरूर करेंगे, लेकिन जितना अधिकतम हो सकता है हम उसको करेंगे। अब देखिए, सूचना का प्रारूप है, बड़े आसानी से 8 बिंदुओं में समा जाएगा, है ना। बॉक्स बनवाएं, जारी करने वाली संस्था का नाम लिखवाएं, आवश्यक सूचना लिखवाएं, विषय का संक्षिप्त में उल्लेख करें। विषय का संक्षिप्त में उल्लेख, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, दिनांक लिखें बाईं ओर, औपचारिक आरंभ करें, सभी नगरवासियों सेक्टर वासियों को सूचित किया जाता है कि इसके आगे विषय को आकार दे दें। 60 में है तो 40 शब्दों में आप विषय वस्तु ले आइए, क्योंकि आपके प्रारंभिक भी कुछ शब्द हो गए, बाद में भी आप लिखेंगे, तो आपका पूरा हो जाएगा 60 शब्द। हस्ताक्षर करें, पद का उल्लेख कर दें। हस्ताक्षर, विद्यार्थी यहाँ अपना नाम ना लिखें, सांकेतिक हस्ताक्षर या केवल हस्ताक्षर लिख दें, उससे भी हो जाता है कि बच्चे को पता है यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, है ना। पद का उल्लेख किया जा सकता है, छात्र संघ अध्यक्ष, जिलाधिकारी। अब इसी बात को पुनरावृत्ति करवानी हो तो कैसे करवाएं, तो ये करवाने का देखिए तरीका, आप यहाँ पर बड़े आराम से आप पुनरावृत्ति करवा सकते हैं। देखिए, पुनरावृत्ति करवा दी, पॉइंट भी लिख दिए, संस्था का नाम, शीर्षक, विषय, दिनांक, औपचारिक आरंभ, विषय वर्णन कैसे करेंगे, क्यों, किसके आदेश पर, कब, किनके लिए आदि, कहाँ, है ना, विषय के अनुकूल, अन्य निर्देश, सूचना जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। तो देखिए, इससे सरल रचनात्मक लेखन का अभ्यास नहीं हो सकता, लेकिन पुनरावृत्ति करवानी है और श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करना है। श्यामपट्ट छप जाता है बच्चे के दिमाग में। आप जब बातचीत करते हुए श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं तो वो पूरी तरह से छपता है। देखिएगा, अच्छा लग रहा है यह प्रयोग आपको, यहां देखिएगा कितना अच्छा प्रयोग है ना। और बच्चे जब खेलते हैं तो अपना सेक्शन भी डलवा देते हैं, आपने देखा यहाँ पे सेक्शन डलवा रहे हैं। जब खेलते हैं, जब उनको लगता है कि उनका कार्य स्तरीय हो गया, उन्होंने सक्रिय भागीदारी की है, तब सब कुछ आ गया। विषय वस्तु कैसे बटी, कब, कहां, क्या, किसके उपलक्ष्य में, किसके आदेश पर, है ना, ये सब आ गया। जारी करने वाली संस्था आ गई, बॉक्स बन गया, सब कुछ आ गया। तो ऐसा अभ्यास अपेक्षित है जब हम पुनरावृत्ति करवा रहे हो, तो इस प्रकार का अभ्यास आता है, बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं एक योजना के साथ, अगर हम वहां पर जा रहे हैं। औपचारिक पत्र का नवीनतम प्रारूप, अभी प्रश्न भी आया था चैट बॉक्स में, देखिएगा आप, यहां पर वो प्रारूप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले परीक्षा भवन, और इसमें बच्चे बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, पता है। मैंने तो इस पे एक्टिविटी करवाई थी, जहां औपचारिक भाषा है बच्चे रट डालें, जहां उनको लिखना है वहां बहुत अच्छी तरह से लिखें। और अभी आप देखेंगे ना, इसमें मूल्यांकन बिंदु अगर उसका भी है ना, ये जो मूल्यांकन बिंदु हैं इसके, तो इसमें बहुत विस्तार दे दिया है। जहां पत्र है वहां औपचारिक बिंदु भी, जो औपचारिकताएं हैं उनके भी बिंदु हैं, कि कहाँ पता लिखना है, कहाँ दिनांक के 0.5, इसी प्रकार जो पता है उसके 0.5, ऐसे करके अंक विभाजन है। एक बार नया जो प्रश्न पत्र पिछले महीने जारी हुआ है, एक बार उसको जरूर देखिएगा, है ना।
तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूं, इसमें वही चीज लिखी हुई है कि जैसे विषय केंद्रीयता है तो अनावश्यक बातें ना करके केवल विषय संबद्ध जो है वर्णन विवेचन होना चाहिए, उसका 1 अंक है विषय वस्तु में, अनुच्छेद में। और मौलिकता, सृजनात्मकता के साथ प्रभावपूर्ण भाषा तथा लेखन शैली का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करना 1 अंक का है। और सीमित शब्दों में विषय के सभी पक्षों को संयोजित करना, शब्द सीमा का पालन करना, ये 3 अंक की विषय वस्तु के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसी प्रकार भाषाई जो है, प्रस्तुति के जो अंक है, प्रस्तुति के अंक क्रमबद्धता, भूमिका तथा निष्कर्ष का होना 0.5. इसी प्रकार भाषाई शुद्धता, व्याकरण, सम्मत भाषा तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग 0.5 अंक, और वर्तनी, शब्दों की शुद्ध वर्तनी का उपयोग 0.5। तो मूल्यांकन बिंदु भी जरूर देख लें। और औपचारिक पत्र का प्रारूप और जो औपचारिक शब्दावली है, अगर हम बच्चों को बता देंगे तो ये सारा जो मूल्यांकन बिंदु है ना, सारे बच्चे हमारे पूरा करेंगे इन बिंदुओं को। अब देखिए, जैसे मैंने कैसे बताया था, इस एक्टिविटी में बच्चे धारा प्रवाह के सुनाते थे। कैसे? परीक्षा भवन, आवास स्कूल, क ख ग नगर, दिनांक, सेवा में श्रीमान, विषय, महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके क्षेत्र का एक जागरूक निवासी हूं तथा आपका ध्यान अमुक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। द्वितीय अनुच्छेद आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विषय वस्तु विस्तार 40-50 शब्दों में। अंतिम अनुच्छेद, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया समुचित कार्रवाई करते हुए हम क्षेत्रवासियों को इस समस्या से छुटकारा दिलवाने का कष्ट करें। इस कार्य के लिए हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। सधन्यवाद, भवदीय अबस। तो जहां रटने वाली भाषा है, जहां औपचारिक शब्दावली है, वहां बच्चों को रटवा दें। जहां उन्हें विषय वस्तु को विस्तार देना है, वहां अपनी वो रचनात्मकता दिखाएं। तो इस प्रकार के प्रयोग जो हैं, वे निश्चित रूप से हमारे बच्चे अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो अच्छे अंक लाने में सफल होंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं कि औपचारिक शब्दावली रटवाई जानी चाहिए। देखिए, दिनांक किसी भी प्रकार से लिखी जा सकती है ना? इसमें कोई बोर्ड कहता है कि कट्टरवाद नहीं है इसमें, तो दिनांक आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। एक प्रश्न आया अभी, चाहे आप 23 अगर इस प्रकार डाल दें तो बहुत अच्छा है। जैसे 23/12 आपने 2023 अगर लिख दिया, मान लीजिए, ये चलेगा, है ना? तो ये चल जाएगा। नहीं तो 23 दिसंबर 2023 डाला, वो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए कैसे पुनरावृत्ति हुई, है ना? इस प्रकार पुनरावृत्ति हो गई। बच्चों के साथ खेलना है। देखिए, लघु कथा के ओर बढ़ रहे हैं हम, विज्ञापन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, विज्ञापन आप देखिए, बने हुए देखिए आप, क्योंकि समय बहुत अधिक अनुमति नहीं दे रहा है आगे। आप देखिए कि कठिनाई स्तर हर प्रकार का आ जाएगा। आप जब करवा रहे विज्ञापन लेखन, तो बच्चों के साथ कहीं खेल जाएं, खेलें बच्चों के साथ। अच्छी तरह से अगर खेलेंगे ना, तो बच्चे गदगद हो जाएंगे। अब मान लीजिए दुर्घटना, यातायात जो पुलिस है, उस वह जो अब जनहित में जारी विज्ञापन जारी कर रही है, तो देखिए कैसे किया जाएगा, आप देखिएगा उसको। सड़क सुरक्षा बहुत जरूरी, दुर्घटना से देर भली है, कितनी अच्छी है यह बात, और वाहन लेकर जब भी निकलें इसको लेकर चलिए साथ। गाड़ी चलाते समय ध्यान रहे, न नशा न लापरवाही, ना ही मौज मस्ती, क्योंकि जिंदगी इतनी भी नहीं है सस्ती। याद रखिए, आप अपने परिवार की भरी पूरी दुनिया हैं। दुर्घटनाओं से बचें, यातायात नियमों का पालन करें। यातायात पुलिस, क ख ग नगर द्वारा, जनहित में जारी। तो आप मौखिक भी करवा सकते हैं, जहां बच्चे खूब पार्टिसिपेट करें, है ना, सक्रिय भागीदारी निभाएं। और आपको मैं उदाहरण यहाँ पर दिखाई रहा हूं, बच्चों ने बनवाया है, अपने सूत्र बनाए, बॉक्स, स्लोगन, है ना, ऐसे करके उन्होंने अपने सूत्र बनवा दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब बच्चे अपना सूत्र बनाने लगते हैं। तो ये यहाँ पे देखिएगा, ये आगे बढ़ते हैं। अब ईमेल लेखन पर आते हैं। देखिए, ईमेल लेखन का प्रारूप इस प्रकार का है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप करवा दें बच्चों को। ये तो सूचना लेखन का था, ईमेल लेखन का यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं ये से ग्रुप पर शेयर करूंगा। देखिए, अगर किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो हमारा प्रारूप कहीं उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जो हमारा औपचारिक पत्र है, शुरू में 3 कॉलम हम ये बनवा दें
4 कॉलम, 2 और सीसी यानी प्रतिलिपि, और बीसीसी कार्बन कॉपी गोपनीय प्रतिलिपि, और सब्जेक्ट यानी विषय। ये 4 कॉलम के बाद में मैसेज बॉक्स आ जाए, दिनांक लिखें, समय लिखें। वैसे तो वो बाय डिफॉल्ट आती है, लेकिन हम लिख दें क्योंकि हमें प्रारूप स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दें। उसके बाद यदि किसी अधिकारी को ईमेल भेजना है तो हमने लिखा सेवा में, प्राप्तकर्ता का नाम आ गया, कंपनी कार्यालय का पता आ गया, स्थान का नाम आ गया, संबोधन दिया। ईमेल में जैसे लिखते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे इंग्लिश में, हम लिखें सहृदय सस्नेह शुभकामनाएं। फिर उदाहरण यहाँ पे दिया है, सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक अबसर नगर, आदरणीय महोदय, सहृदय शुभकामनाएं। फिर आरंभ किया है, सविनय आपके संज्ञान में लाना है। तो इस प्रकार आपकी चेकबुक खो गई है तो उसके संदर्भ में सूचित करना है, या नया खाता खुलवाना है तो उसके संदर्भ में सूचित करना है। इस प्रकार ईमेल का मैं प्रारूप आपके साथ शेयर करूंगा। अब एक लघु कथा लिखते समय हमें अधिकाधिक लघु कथा सुनानी चाहिए। जैसा मैं पेपर में देख रहा हूं, जो विषय आए तो विषय इस प्रकार के हैं जहां बच्चे की मौलिकता होनी चाहिए। परंपरागत कहानियों को कोई स्थान ऐसा दिया नहीं गया है ना। देखिए, वे दिन कितने अच्छे थे जब हम छोटे बच्चे थे, विषय पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। तो कहीं कथात्मकता भी हो, है ना, वो सब जुड़ा हुआ होना चाहिए। कथात्मकता हो, भाषा अच्छी हो। अब देखिए कैसे, आप देखें कि एक लघु कथा सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कैसे हम बनाएं। यहाँ पे देखिए आप, ये योग का मंत्र, बढ़ता पैसा घटती सेहत, सेहत का सुख एक पक्का विश्वास, बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत व्यक्ति, उसकी दिनचर्या, पैसा खूब पर सेहत की समस्या, योग शिविर में भाग लेना और योग अपनाना, सेहत सही होने का विश्वास। अब आप देखिएगा, बहन सुनीता बहन पढ़ेंगी? जी सर, जी सर। नवीन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। उसकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है। कई बार तो उसे नाश्ता भी कार में ही करना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी इस दिनचर्या का असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। नवीन को महसूस होता है कि शाम होते होते वह मन और तन दोनों से थक जाता है। आज उसके पास बड़ा घर, बड़ी कार, धन दौलत सब कुछ था, पर सेहत घट रही थी। गिरती सेहत उसके लिए गंभीर समस्या थी। अपने आप से बातचीत करने की भी कभी फुर्सत मिलती तो वह कहता, काश मेरी सेहत पहले जैसी हो जाए तो कितना अच्छा हो। उसकी कंपनी ने योग कार्यशाला का आयोजन किया। योगाचार्य की आयु 65 वर्ष के करीब रही होगी, लेकिन उनके शरीर की चुस्ती फुर्ती सबको प्रभावित कर रही थी। योग अगर अपनाओगे, सेहत का सुख पाओगे। उनका यह योग मंत्र अब नवीन ने दिनचर्या में शामिल कर लिया था, और उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सेहत उसके लिए समस्या नहीं रहेगी। बहुत ही सुंदर पढ़ा, भावपूर्ण जो है प्रस्तुति। तो देखिए कैसे लघु कथा ने आकार लिया, है ना। इस प्रकार लघु कथा, अगर अच्छी लघु कथाएं, हम पूरे सत्र में, कई बार हम लघु कथा की उपेक्षा कर देते हैं, लघु कथा बच्चों को नहीं सुनाते हैं, है ना। बच्चों को लघु कथा सुनानी चाहिए। संध्या साकल्य जी की एक लघु कथा है, वास्तव में भावपूर्ण है। एक बार फिर से आग्रह करूंगा, अनुरोध जी करूंगा। सर, अवश्य। जी। माँ का कमरा। अब माँ तो नहीं रही, पता नहीं इस राखी पर कोई बुलाएगा या नहीं। सोनाली इस सोच में डूबी थी। उसी समय फोन की घंटी बजी। बड़ी भाभी का फोन था। सोनाली, दीदी आप राखी पर 2-4 दिन पहले आ जाना। सोनाली तैयारी करके निकल पड़ी। मन में कुछ विचित्र से ख्याल आ रहे थे। माँ नहीं है तो क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा वहां? सोनाली मायके पहुंच गई। सबने बढ़िया स्वागत किया और उसका सामान माँ के कमरे में रख दिया, क्योंकि वह जब भी आती थी माँ के कमरे में उनके साथ ही रहती थी। जब तक वह रही, बड़ी भाभी उसके साथ ही कमरे में सोई। उसको माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जब सोनाली जाने लगी तो भाभी ने कमरे में बुलाया और जैसे माँ देती थी वैसे सब तरह के अचार, मिठाई, साड़ी, गिफ्ट दिए।
और भाभी ने सोनाली का हाथ में लेकर कहा, तुम कभी ये मत समझना कि माँ नहीं है। तो मायका कैसा? माँ का कमरा सदा आपका रहेगा, जब मन करे आ जाया करना। सोनाली भाभी माँ कहकर लिपट कर रोने लगी। कितनी भावपूर्ण कहानी है वास्तव में, है ना। मतलब संवेदनाओं को छूने वाले शब्द, बच्चों को साहित्य से परिचित करवाएं। लघु कथा लेखन ऐसी विधा है जो बच्चों को ना सुनने से आएगी। बच्चों को अधिकाधिक लघु कथा सुनाएं। संध्या साकल्य जी ने कमाल कर दिया इसमें, सीधे संवेदनाओं को छूने वाले शब्द हैं, है ना। बच्चे सीखेंगे और बच्चे वो शिल्पगत ज्ञान प्राप्त करेंगे जो लघु कथा को अपेक्षित होता है। मौलिकता उनकी आएगी। परंपरागत जो हमारी कथाएं चली आ रही हैं लघु कथा के अंतर्गत नहीं आती हैं वे, है ना। उनका अपना महत्व है, लेकिन लघु कथा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अगर हम इस प्रकार का ज्ञान देंगे तो ये पेपर पैटर्न जो नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप है उसके साथ न्याय कर पाएंगे, उसके कठिनाई स्तर के अनुकूल बच्चों को लेकर आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने तन्मयता के साथ मुझे सुना है ना। हालांकि 7 मिनट ओवर हो चुके हैं, हमें 8:30 पे खत्म करना चाहिए था, लेकिन 7 मिनट ओवर हुए। लेकिन आपकी तन्मयता और आपकी सक्रिय भागीदारी से मैं अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना। अब प्रश्न का समय है जी। बहुत बहुत कैसा धन्यवाद लगा आप सर। सबको? एक बार चैट बॉक्स में आ जाइए, कैसा लगा यह सत्र, यह वेबिनार कैसी लगी? लाभदायक सर रहेगी? सभी अंत तक सभी आपके साथ जुड़े हुए। जी 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 जी। नहीं, आने लगा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्रिस्टल, बहुत बहुत बार बार होनी चाहिए। जी 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 यूजफुल, जी। उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब बहुत मैं बहुत पीपीटी धन्यवाद। हटा देता हूँ। मित्रों और सहयोगियों, आज का ज्ञान यज्ञ सचमुच अद्भुत रहा। डॉक्टर विनोद प्रसून जी हमें शब्दों के जादू का सफर करवाते हैं। ऐसी लयबद्ध यात्रा जिसके सुर हमारे मन में लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। आज की कार्यशाला से दक्षताधारी शिक्षण, कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण, सार गर्भित सृजनशीलता के लिए छात्रों को प्रेरित करना, अवधारणाओं को आत्मसातीकरण करने में छात्रों की सहायता करना, साधारण सरल उक्तियों के द्वारा सरलता से कठिनाई की तरफ जाने वाले प्रश्नों का निर्माण करना और इस प्रकार से आगे बढ़ना और ने कर्तव्यों को पूरा करना, ये हमने सीखा। तो चलिए, अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, आगे बढ़ते हैं। सवालों का स्वर्णिम पल है। मन में अनेक आपकी ज्वलंत जिज्ञासाएं हैं, उसको शांत करने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने बेझिझक अनेक प्रश्न जो हैं उन जिज्ञासाओं को, उन प्रश्नों को उड़ान दें। चलिए सर, जब तक यहाँ पे सभी हाथ ऊपर करते हैं, कुछ प्रश्न थे जो बीच में मैं आपके आदरणीय साथ। सुधीर प्रसाद मालाकार जी का हाथ उठा। Yeah. Sudhir sir, you can speak. सर मेरा निवेदन था जी कि जी सर जो मुहावरे हैं वो जी। पाठ्य पुस्तक के पाठ्यों से मूलतः प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं या फिर सामान्य ढंग से? क्या है कि देखिए कई वर्षों का प्रश्न पत्र में देखा हूँ कि जी पाठ्य पुस्तक के पाठ्यों से मुहावरे पूछे जाते हैं सर। बिल्कुल। पाठ्यक्रम में है ही यह कि पाठों के अंदर जो मुहावरे आए हैं जी उन्हीं को पूछा जाएगा। तो जी जी पाठों जी। के अंदर जो मुहावरे आए हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसा ही सामान्यतः उन्हीं व्याकरणिक। पर आधारित होते हैं। अब पेपर सेटर है, मान लीजिए कोई मुहावरा, प्रचलित मुहावरा है, वह दे दिया तो हो सकता है आ जाए, लेकिन ज्यादातर प्रश्न उन्हीं से बनते हैं जी। ऐसे ही सर समास समाज से भी ऐसे प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पाठ्यों से ही समास वगैरह भी या व्याकरण के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वाक्य रचना का जी वाक्य बिल्कुल परिवर्तन हुआ, ऐसे सर सब मूलतः मैंने पाठ्यों को ही पूर्णतः व्याकरणिक दृष्टिकोण से तैयार किया जाए, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस समय पाठ पढ़ा रहे हों तो उस समय जी कहीं, जी जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था, जी। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, उसमें जो हाँ, पाठ प्रवेश है उसमें उसमें जी मिश्र जी जी वाक्य है। जी
ज्यादातर जी मिश्र वाक्य है ना, तो जी 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 वैसे ही वाक्य परिवर्तन में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जी जी। धन्यवाद सर। नहीं नहीं, पूछिए सर, पूछिए सर, पूछिए सर। सर पूछिए। नहीं, ईमेल लेखन का जो फॉर्मेट है सर, जी उस फॉर्मेट में जो हमारा हिंदी जो टाइपिंग का सेटअप के लिए या बच्चों को लिखित रूप से प्रेरित करने का अगर विद्यालय में या ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए कि बच्चों को हिंदी टाइपिंग भी सिखाई जाए और आ जाए तो कंप्यूटर के अच्छा माध्यम रहेगा, से व्यावहारिक स्तर ईमेल पर करें उतर आएगा। बच्चे। सर तो ये मेरा विश्वास है कि सर यदि आप ये इस पर पुनर्बल देंगे तो हमारा विद्यालय प्रशासन भी इस पे तैयारी अपनी करेगी, है नहीं ना नहीं, सर? बिल्कुल। कंप्यूटर सर ये तो सर सर आपके अच्छा प्रयोग रहेगा, क्योंकि जी सर, जी सर, जी व्यावहारिकता सर, जी होनी सर। चाहिए ज्ञान में, तो विद्यार्थी बच्चे तो व्यावहारिक रूप आईटी से रखते उसका ही प्रयोग हैं, कर पाएंगे। आईटी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट किसी विद्यालय में तो रखते ही है वो जी अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो जी उसके आधार पे यदि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए तो आपके बिल्कुल। तरफ से अगर यदि सारे शिक्षकों को या विद्यालय प्रशासन को हिदायत दी जाए कि ईमेल लेखन कुछ ऐसा किया जाए नहीं बिल्कुल, तो बहुत गतिविधि बेहतर। आप देखिए, आपसे हम सब सीख रहे हैं इस समय। पूरा मतलब हम सब जितने जुड़े हुए हैं, हम सब सर ने सर उसको नोट कर लिया है, और सर यह सर गतिविधि वास्तव अवश्य। में एक अच्छी गतिविधि है। तो हम सब जी इसका जी, पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, प्लीज सर, धन्यवाद। प्लीज सर, प्लीज सर, आपके आपके माध्यम से यदि ये विचार जाए तो जी हमारा विद्यालय प्रशासन और हमारे जो सारे शिक्षक बंधु हैं जी या मैडम और सर सारे लोग तकनीकी विधियों में भी पारंगत हासिल करेंगे और जी, उसका लाभ तो अंतोगत्वा विद्यार्थियों को मिलना है और देश को मिलना है सर। बिल्कुल और बिल्कुल विश्व में अपना नाम ऊंचा होना है, हिंदी का ध्वजा पताका फहरेगा सर। बिल्कुल। अब धन्यवाद धन्यवाद सर, सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, सर। धन्यवाद। सर, ईमेल से जुड़े हुए 2 प्रश्न और थे चैट बॉक्स में। जी टीचर्स जानना चाहते, सुजाता मैम, कि सीसी और बीसीसी इंग्लिश में ही लिख सकते हैं या इसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता है? देखिए, कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। ईमेल लेखन है, तो अगर हम टू लिख दें, सीसी लिख दें, बीसीसी लिख दें, तो कोई बहुत बड़ा वो मतलब वो नहीं है। हिंदी में लिखना आवश्यक नहीं है यहाँ पर। टू के आगे अगर मान लीजिए उसने ईमेल आईडी भी तो उसी में लिखेगा ना। मान लीजिए ईमेल आईडी इंग्लिश में लिखेगा, सांकेतिक लिख रहा है तो abc@gmail.com कुछ तो लिखेगा ना। लिख रहा है। तो जब टू तो वहां पे स्वीकार्य है। जी सर, दूसरा क्या है, उसमें बॉक्स बनाना जरूरी है? देखिए, बॉक्स बनाने से प्रस्तुतिकरण प्रभावी बन जाता है, और जैसा ये जो पेपर पैटर्न है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है, उसमें स्पष्ट है कि प्रस्तुतिकरण के अंक हैं। तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी बनाने के लिए हमें कॉलम का उसका बॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। सर, एक प्रश्न था कि क्या विज्ञापन, जब बच्चे विज्ञापन लिख रहे हैं तो उसमें जो चित्र बनाते हैं तो क्या उसमें रंग भर सकते हैं? देखिए, अगर कि क्या समय है उसे तो पेंसिल से ही करना पेंसिल चाहिए, से ऐसा? देखिए शेडिंग कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना समय होता नहीं है। 3 घंटे का पेपर है, नहीं मिलेगा समय कि कहीं चित्र बनाने के बाद उसमें कलर करें। अगर आपके पास समय है, आपकी लेखन गति अच्छी है, तो फिर कर दें। बच्चों से कहें, अगर लेखन गति अच्छी है, आपका पेपर समय पर हो गया है, तो फिर उसको सजा दें। सर, एक प्रश्न है कि लघु कथा में संकेत बिंदु मिलेंगे क्या? संकेत बिंदु देखिए, ये जो नया पेपर आया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें संकेत बिंदु नहीं है, शीर्षक ही है। तो शीर्षक मिलेंगे, शीर्षक को ही विस्तार दिया जाए। यह एक दक्षता है, निर्माण की दक्षता, विस्तार की दक्षता। तो दक्षता विकास है यह, तो इसका मूल्यांकन होना है, तो वहां पर संकेत बिंदु उसमें नहीं दिए गए। सर, पहले लघु कथा से यह स्पष्ट हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर कहानी में घटना या चरम हो, ऐसा जी सरोजनी जी ने कहा है। यस सर। जी 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 आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। प्रवेश जी काफी समय से हाथ। जी जी प्रवेश जी। हेलो। जी जी सर। सर। हाय। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं सर आप? मेरा डाउट ईमेल का था। ईमेल एड्रेस अगर हम लिख रहे हैं तो वापस फिर से क्यों एड्रेस लिख रहे हैं? सेवा में पद का नाम और एड्रेस। इसलिए देखिए, अगर किसी अधिकारी को आप लिख रहे हैं, अगर यस। आप सामान्यतः अधिकारी की तरफ से किसी को पत्र जा रहा है, तब तो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम अधिकारी को लिख रहे हैं, मान लीजिए हम बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं और वो उनकी ऑफिशियल आईडी है, तो कहीं हमें उनका पदोल्लेख करना चाहिए।
मान लीजिए जो पंजाब नेशनल बैंक है उनकी ऑफिशियल आईडी है कोई, और उस पर हम लिख रहे हैं, और हम लिख रहे हैं मैनेजर के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका उल्लेख तो होना चाहिए ना मेल के अंदर। मान लीजिए हमने लिख दिया सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, तो अच्छा लगेगा। हम डायरेक्ट मेल लिख रहे हैं तो उचित नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि ये बच्चों का भी काफी था डाउट कि अगर हम ये तो फिर लेटर राइटिंग का पूरा एकदम आ जाएगा। ईमेल एड्रेस एक देखिए ईमेल द्वारा पत्र व्यवहार है, यस है ना, है पत्र व्यवहार। तो यस पत्र की जो मर्यादाएं हैं, जो हमारी भाषा की मर्यादा हैं, उनको हमें पूरा करना चाहिए। तो ओके, थैंक केवल यू ये सर। नहीं है कि अगर ये पंजाब नेशनल बैंक का ईमेल है हम डायरेक्ट ही उसको उनको लिख दें, खाता खुलवाना है या हमारी चेकबुक खो गई है हम डायरेक्ट शुरू कर दें, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। वहां पर हमें उनका पदोल्लेख तो करना ही चाहिए, उनके लिए लिख रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं पदोल्लेख होना चाहिए। ओके सर, आपने थैंक देखा भी यू। होगा स्कूल में भी ईमेल आते हैं, जो पेरेंट लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं वो टू द प्रिंसिपल, है ना, लिखा जाता है। तो यस सर। जी, तो लिखना चाहिए वहां पर। अधिकारी को ओके, अगर ईमेल लिख रहे हैं तो उनका पदोल्लेख होना चाहिए जी। ओनली केवल महोदय लिखा तो फिर मतलब रॉन्ग रहेगा क्या ऐसा? देखिए अगर महोदय, हमने महोदय तो लिखेंगे ही, क्योंकि वहां हम सम्मान दे रहे हैं। वो भाषिक हमारी वो तो संस्कृति है, भाषिक मर्यादा है कि हम वहां पर संबोधन देते हैं उस प्रकार का, है ना, आदर देते हैं। लेकिन पूर्व में उनका पदोल्लेख होना चाहिए, किसको आप लिख रहे हैं वहां पर। ईमेल आईडी जरूर मान लीजिए उनकी है, विभाग मतलब संस्था की है, लेकिन किसको लिख रहे हैं वहां पर, जो जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं उसका पदोल्लेख आप करें। जैसे मान लीजिए दूरदर्शन महानिदेशक को आप पत्र लिख रहे हैं, तो महानिदेशक दूरदर्शन नई दिल्ली, तो इस प्रकार का अगर उल्लेख कर देंगे, उसके बाद अगर हम विषय डाल के अगर ईमेल लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ अलग चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर हम लिख रहे हैं सस्नेह जो शुभकामनाएं हमने लिख दिया, जैसे आजकल चलन में है, इंग्लिश में चलन में है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, उस प्रकार का प्रारूप कहीं हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बाकी एड्रेस तो लिखा जाना चाहिए और पद का उल्लेख होना चाहिए जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सिमना जी, सिमना के। ऋषिपाल। हेलो। जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है, ईमेल और सूचना पत्र जो हम लिखते हैं या विद्यार्थी लिखते हैं, समय के अभाव के कारण वो बॉर्डर बनाए या न बनाए, यह जरूरी है या नहीं? क्योंकि कई बच्चे जो सूचना पत्र और ईमेल को जो हम विज्ञापन पत्र लिखते हैं, तो उसमें वो कुछ कलर भी कर देते हैं, तो उसके चक्कर में इस भाव को देखते हुए वो कई बार बॉर्डर नहीं बना पाते, तो इसके लिए क्या है विचार? सर आप म्यूट पे हैं। देखिए मैंने बताया, पहले भी बताया कि जो प्रस्तुतिकरण है ना वह प्रभावी, इसका अर्थ है कि जल्दबाजी में कार्य हो रहा है, लेखन गति सही नहीं है, समय नियोजन सही नहीं है, उसी हाँ का जी। अभ्यास हमें करवाना है। बच्चा मान लीजिए कम उसकी लेखन गति कम है तो पहले से अभ्यास हम करवाएं, या फिर हम कह दें कि जहां बहुवैकल्पिक प्रश्न है वहां केवल वो विकल्प लिखाए। कहीं ना कहीं हम उसको समय नियोजन सिखाएं। बॉक्स अगर बनाते हैं तो उससे प्रस्तुति आकर्षक बनती है। नहीं तो बच्चा क्या करता है, आपने कॉपी देखी होंगी, हाँ जी। कक्षाओं में जो कॉपी आती हैं, बड़े अटपटे ढंग से विज्ञापन लिख दिया जाता है अगर बॉक्स नहीं बना हुआ है तो, और या हाँ जी। सूचना लेखन को भी अटपटे ढंग से उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रस्तुतिकरण के तो अंक खो रहा है बच्चा। और अगर प्रस्तुतिकरण प्रभावी नहीं है तो आप भी समझते हैं सर, मूल्यांकन में कितनी बुरी तरह अंक काट दिए जाते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। है ना। तो क्यों? उचित होगा बच्चे को हाँ जी। पहले समय नियोजन सिखाएं। हाँ अगर जी। लेखन गति कम है कोई बात नहीं, विकल्प लिखाए केवल, अगर पहले का उत्तर उसका
क है तो क लिख दे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही करके सारे कर दे, क्योंकि लेखन गति कम है, उसका मूल्यांकन हो जाएगा, क पे भी मूल्यांकन होगा, आगे अगर हाँ वो जी, उसका विकल्प लिख रहा है उस पे भी मूल्यांकन होना है और उतने ही अंक का होना है। तो हाँ जी, हम हाँ कहीं ना जी। कहीं ये बच्चों को सिखा दें कि बेटा समय नियोजन मुख्य है, उसको ध्यान में रख के आपको कार्य करना है, प्रस्तुति हाँ जी, आकर्षक करने। अगर प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है तो 5 से 10% अंक अपने आप आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मनीषा जी। मनीषा जी। अनम्यूट कीजिए मनीषा जी अपने आप को। कामिनी जी। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ विनोद सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। मैं सबसे पहले आपको बर्थडे की शुभकामनाएं। सर धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं, मेरा सौभाग्य बहन। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक नहीं बल्कि दो। एक तो सर ये कि कई बार बच्चे बॉक्स नहीं बनाते सूचना में, विज्ञापन में, जी, तो क्या बॉक्स ना बनाने के मार्क्स काटे जाने का कोई तो विधान देखिए, है? एक अभी अगर 4 साल पहले की मार्किंग स्कीम देखी जाए तो उसमें जो था स्पष्ट लिखा हुआ था कि बॉक्स का अंक आधा अंक काट दिया जाए, ऐसा आया था, है ना। और अब की जो हम देख रहे हैं, मूल्यांकन बिंदु जो देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण के भी अंक हैं। अगर बॉक्स बच्चा नहीं बनाता है तो उसमें प्रस्तुतिकरण प्रभावी बनेगा ही नहीं, सूचना लेखन में इतना प्रभावी नहीं बन पाएगा, विज्ञापन में इतना प्रभावी नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि कहीं ना कहीं बच्चों को हम समय नियोजन सिखा दें कि बेटा समय नियोजन के साथ कार्य करें, और विज्ञापन और सूचना लेखन ऐसा है जहां पर आपको बॉक्स बनाना ही है। कितना 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 30 सेकंड में बॉक्स बन जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों को कह दें कि बेटा बॉक्स बना के अगर लिखेंगे ना तो प्रस्तुति प्रभावी बन जाएगी, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपको 3 मिलने वाले होंगे उसमें सूचना में बिना बॉक्स के, तो जो बॉक्स अगर आपने बनाया हुआ है तो 3.5 भी मिलने के चांस हो जाएंगे, है ना। इतना प्रभाव पड़ जाता है प्रस्तुतिकरण का। तो मेरा अनुरोध यही है, मेरा आह्वान यही है कि हम बच्चों को बॉक्स बनाने के लिए प्रेरित करें। कलर सर करना, कलर करना ना करना ये तो बोर्ड ने भी कहा है, अगर समय है तो कलर करें, नहीं तो नहीं, छोड़ दें। शेडिंग करने का समय है तो करें, शब्दों का सौंदर्य उभारें, है ना। तो वो शब्द मिलने चाहिए विज्ञापन में, बाकी कलर का समय नहीं है तो छोड़ दें, लेकिन बॉक्स जरूर बनाएं। जी थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है कि एक जी। पदबंध था कि अंग्रेजी खेमे से भागता हुआ सिपाही सरपट घोड़ा लेकर भागा, जी तो उसमें सिपाही तक रुका शीर्ष शब्द जो था सिपाही था, हम्म, तो हमें पता चलता है कि ये संज्ञापद बंद है। 100%। घोड़ा पर रुका तो भी पता चलता है, लेकिन जी अगर लाइन जाकर के सरपट पर रुक गई तो हम इसे कौन से पदबंध में लेंगे? कहाँ सरपट सिपाही से पहले आया? जी सर। सर वाक्य दोबारा बोल रही हूँ। जी अंग्रेजी खेमे से दौड़ता हुआ सिपाही सरपट घोड़ा लेकर दौड़ा। देखिए, पदबंधीय संबद्धता नहीं रहेगी अगर सरपट तक आया तो, जी क्योंकि सर। क्रिया विशेषण पदबंध की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, है ना। उनकी जी अपनी सर। कुछ पहचान होती है, तो सरपट तक तो ये जुड़ ही नहीं रहा है, ये पदबंधीय संबद्धता नहीं रही पदों के बीच में। हमें जी सर। को संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, उसमें एक वाक्य एक शब्द आगे क्रिया विशेषण का लिख के अगर हम उसको जोड़ेंगे तो पदबंधीय संबद्धता तो चली जाएगी, तो ये वाक्य सही नहीं है ना। सही नहीं बना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। Vinod sir, we have 5 minutes more. This link will जी expire सर, at जी 9 सर, o'clock. जी बिल्कुल। एक दो So, प्रश्न। Sunita ma'am, we can wind up now. जी ओके सर। Yeah. एक दो प्रश्न और लेते हैं। Yes, one question we can take. जी
बाकी सब साथी जुड़े हुए हैं, ग्रुप पर भी हम संवाद कर सकते हैं ना, कर क्योंकि सकते हैं। समय जी इजाजत नहीं दे रहा है आगे। जी जयश्री, जयश्री अमोल, गगन पटनायक, इनके हाथ ऊपर है सर आई थिंक। कनक राय जी, हेलो, जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे जो क्षितिज किताब है जी उसमें का जो क्वेश्चन है सर, पेपर पैटर्न वो अलग है। जैसे उनका लेखन कौशल्य हुआ, व्याकरण पोर्शन है सर उनका देखिए, अलग वो है। कोर्स ए है, वो हाँ, कोर्स ए कोर्स है। ए है सर। हाँ उनको अलंकार है, समाज नहीं है सर, बिल्कुल और उन्हें पद परिचय है सर। जी। तो उसके लिए मुझे शॉर्टकट गाइडलाइन चाहिए सर। अच्छा, पदबंध वगैरह के लिए आपको कुछ शॉर्ट वो चाहिए। हाँ, शॉर्ट नोट्स चाहिए सर। जी अगर आप ग्रुप में भी शेयर करते हैं तो भी चलेगा सर। मैं भेज दूंगा पद ओके सर। परिचय के लिए ना? पद हाँ, परिचय के पद लिए भेज दूंगा, परिचय और अलंकार के ऊपर मैम। जी सामग्री भेज देंगे आपके पास में। हाँ, सही ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। अ, समापन। जी समापन करो। जी 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 बिल्कुल। जी सर। आज के इस ज्ञान यज्ञ के समापन के अवसर पर मैं आप सभी की अत्यंत आभारी हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाया। आज सभी ने पूरे सत्र में धैर्य और समर्पण के साथ ज्ञान प्राप्त किया। आपके योगदान के लिए हम आपके सदैव आभारी हैं। आगे डॉक्टर अब्दुल सलाम सर, मैं आपके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को हम संभव नहीं कर पाते। मैं आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर विनोद प्रसून सर जी, आपके मार्गदर्शन के बल पर हम सभी छात्रों को नवाचार और अपनत्व के माध्यम से उनका किस प्रकार से पथ प्रदर्शन करना चाहिए यह सीखते हैं। आपके विचारों और अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद मैडम। माननीय शिबू सर जी, आपके विचारों और प्रेरणाओं से हम सभी प्रेरित हुए हैं। बिजू सर आपका जी, भी बीजू Thank सर। you, thank you. क्षमा करें Thank बिजू सर जी। No, मैं no आपका matter, no हृदय matter. पूर्वक आभार प्रकट करती हूँ। क्षमा कीजिए सर। भारतीय सहोदय की तकनीकी दल के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सरिता जी का कार्यक्रम से शुरुआत से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी वास्तव को Excuse फिर me, से ma'am. याद दिलाती कि फीडबैक I और would like to wish. I यस would like to wish all my BTech members and respected Salam sir and Vinod Prasun sir, our धन्यवाद। director also, everybody a very happy Christmas and a very happy New Year, ma'am. आपको भी थैंक यू सर, सो मच आपको भी सर। Thank you, thank you. थैंक भगवान यू आप सो सबका मच। भला करे। जी बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, वास्तव में सभी बहनों और भाइयों का आत्मिक आभार कि आपकी सक्रिय भागीदारी ने कार्यशाला को, वेबिनार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। आत्मिक आभार सलाम सर, सुनीता बहन, सरिता बहन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सलाम सर। Yeah, सभी को धन्यवाद. It was a very great session. I could see the feedback and a lot of talia, right? धन्यवाद सर। Yeah, so thank you so much, Vinod ji. Once again, definitely we are very much grateful to you. It's time for another. This link will be expiring in 1 minute. जी So on behalf of BTAG, everybody, we are wishing everybody a happy Christmas and happy New Year. Just like Vijay sir said, last time we were together. जी जी बिल्कुल। Maybe next year we will be together if God wills. प्रतीक्षा रहेगी सर, है ना? Yes, yes. इंतजार रहेगा। जी धन्यवाद। Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, Sunita ma'am, for Thank the you so much, sir. beautiful moderation, and especially Thank your reading the content. The text was so लाजवाब। yeah, so बहुत बहुत so धन्यवाद सर। interesting with the meaning. That is how a teacher should read. So thank you so much,
Sunita ji. बहुत बहुत धन्यवाद There is सर, बहुत always बहुत a chemistry between Vinod sir and Sunita ji, both Hindi experts. So we सर are मैं very इंतजार happy. करती हूँ। Yeah, we are very happy that we got connected with you because a lot of educators are, getting enlightened. So thank you, everybody. Be connected. Good night. Good night, everybody. Good night, sir. हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच सर, Thank बहुत you. बहुत Thank धन्यवाद। you.